morning, students. Good morning. Good morning. So today we have one new student, Mr. Harshil Parmar. Please turn on your video. Okay, so from today onwards, we are going to start new chapter. If you feel any doubt in between or any queries do you have, so you can ask me in between. Okay, it might happen that some at some points you will feel little bit of difficulty, but don't worry, you will get along with this. But if you feel any queries or doubt in between, just ask me. Okay, so let's start. Let's do a quick revision of our previous class. What we have completed on Saturday. Online students, what we have completed on Saturday. क्या कंप्लीट किया था हमने? Digestion, evisceration, Yes, digestion, evisceration, discharge teaching, discharge teaching, wound wound infection, infection, wound infection, then paralytic ileus, and yes, constipation. ambulatory care, ileus. Okay, so what is paralytic ileus? What do you mean Inappropriate by forward movement of the bowel content. Bowel movement. जो फॉरवर्ड मूवमेंट होनी चाहिए बॉवेल कंटेंट की वो बंद हो गई है. फेलियर ऑफ प्रॉपर फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द बॉवेल कंटेंट. क्यों ऐसा हुआ है? ड्यू टू एनेस्थेशिया और मे बी ड्यू Medication. medication, मैनिपुलेशन ड्यूरिंग द सर्जरी. जब कोई एब्डोमिनल सर्जरी होती है और इंटेस्टाइन थोड़ा भी मैनिपुलेट करोगे सो इट विल गेट डैमेज. आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को पैरालिटिक इलियस है? Post-operative vomiting, पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग होगा पेशेंट को. देन Constipation. absence bowel sound, abdominal distension and absent Constipation. bowel sound, absent bowel sounds. Yes, not diminished. Completely absent bowel sound, then absent movement, bowel movement and absent flatus also. The patient will not able to pass the flatus also. The bowel movement will be absent and the bowel sounds are also absent. So what are the interventions? What is our main goal? intake output, Yes, monitor, we will monitor intake output, but our main goal is to prevent the complications. पैरालिटिक इलियस इज अ पोस्ट ऑपरेटिव कॉमन कॉम्प्लिकेशन बट वी डोंट वांट कि वो ज्यादा वर्स हो जाए. सो वी विल वेट अंटिल वो नॉर्मली बैक अपने नॉर्मल फंक्शन में आ नहीं जाता तब तक वेट करेंगे. सो वी विल नॉट गिव एनीथिंग बाय माउथ टू द पेशेंट, बट पेशेंट का न्यूट्रिशन भी हमें मेंटेन करना है. सो फर्स्ट, जब तक पैरालिटिक इलियस ट्रीट नहीं हो जाता, व्हाट यू विल डू? IV fluids or pendant, NPO, Yes, first we will maintain the NPO status until the vowel sounds reaching. NPO status maintain करोगे but उसमें देर लगेगी, so we have to provide IV fluids or parenteral nutrition. Any of the things you can give. Patient बहुत ही ज्यादा माल nourished है या patient की बहुत major surgery हुई है, so we have to give the parenteral nutrition. Otherwise normal surgery थी, इतनी ज्यादा major नहीं थी, so IV fluid से patient maintain hydration status maintain रहेगा. So you can give IV fluids or parenteral nutrition. Then अभी हमें वो bowel sounds पे जल्दी normalize करना है. So what you can do? early ambulation, Early ambulation, then certain medications which increases the GI motility and GI secretions. सारे increase हो जाएंगे. Then another NG, thing, एनजी सक्शनिंग. सो इंटरमीडिएट सक्शन और कांस्टेंट सक्शन. एनजी ट्यूब जो भी पेशेंट की जीआई सर्जरी होगी सो उसमें नॉर्मली एनजी ट्यूब होती है. अगर पेशेंट की कोई और सर्जरी थी और उसको पैरालिटिक इलियस था, देन ऑल्सो वी कैन इंसर्ट द एनजी ट्यूब. एनजी ट्यूब इंसर्ट करके कंटिन्यूअस और इंटरमीडिएट सक्शन पर रख दोगे तो उससे डिकम्प्रेशन हो क्रिएट होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से नॉर्मल बॉवल function start हो सकता है. So these are the interventions. What is the really important point that you have to remember? Postoperative vomiting, abdominal distension, absence bowel sound, Yes. If
there is a post-operative vomiting, abdominal distension, and absence of bowel sound. These three are classical signs of Paralytic paralysis. ileus. So you have to identify. Next, what is wound infection? Due to poor aseptic technique in surgery, or Maybe in any procedure, incision okay, maybe procedure. procedure, yes. Diabetes mellitus, I hope, I guess. ओके सो देर इज अ इन्फेक्शन इन द वुंड जो सर्जरी का वुंड है वो इन्फेक्टेड हो गया है क्यों तो फर्स्ट रीजन इज ड्यू टू यूज ऑफ पुअर एसेप्टिक टेक्निक सेकेंड वो जो वुंड था वो प्रायरली सर्जरी से पहले ही कंटामिनेटेड था एंड एक्सप्लोरेशन के लिए वहां पर सर्जरी किया है सो दैट द पेशेंट विल गेट इन्फेक्शन और एल्स पेशेंट इज डायबिटिक और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दिस टू आर हाई रिस्क पेशेंट इसकी वजह से हमने पहले ही देखा था कि विच मेडिकल कंडीशंस आर कंसिडर एज हाई रिस्क तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डायबिटीज उससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है सो दिस आर हाई रिस्क पेशेंट्स तो इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है इन्फेक्शन कब होगा आफ्टर सर्जरी 3 to 6 days. 3 to 6 days बिकॉज तब तक तो जो बैक्टीरियाज है वो ग्रो होंगे इंक्यूबेशन पीरियड है सो 3 to 6 डेज बाद सिम्टम्स स्टार्ट होंगे इन्फेक्शन हो जाएगा और जो भी वुंड एजिस है जहां पर सर्जरी किया है इंसिजन मार्क है तो वहां से कैसा डिस्चार्ज होगा Purulent. पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा और वुंड एजिस भी कैसे हो जाएगी एडिमा की वजह से Separated. सेपरेटेड हो जाएगी बिकॉज देर इज एडिमा सो वुंड एजिस सेपरेटेड हो जाएगी तो जहां पर सूचर्स लिए हैं सूचर्स कैसे होंगे sutures will be so tight like they are holding the skin together so sutures हमें एकदम टाइट लगेंगे बहुत ही टाइट जबरदस्ती ऐसे होल्ड कर रहे हो स्किन को वैसे सूचर्स आपको टाइट सूचर्स दिखेंगे सो व्हाट आर द असेसमेंट फाइंडिंग पेशेंट को इन्फेक्शन है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के सारे साइंस तो होंगे ही व्हाट आर दे फीवर, फीवर, फीवर मे बी स्वेलिंग भी हो सकता है। swelling yes रेडनेस इंसिजन साइट पर रेडनेस होगी फीवर होगा स्वेलिंग होगा प्रिवलेंट डिस्चार्ज होगा देन जब आप पाल्पेट करोगे तो आपको कैसा फील होगा वार्म वार्म यस एंड पेशेंट फील पेन, And टेंडरनेस यस जब आप टच करो और पेन हो देन इट इज कॉल्ड एज tenderness. टेंडरनेस और विदाउट टचिंग पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग पेन सो इट इज कॉल्ड एज पेन तो इन्फ्लामेशन होगा वहां पर एडिमा देखने को मिलेगा ड्यू टू स्वेलिंग एडिमा की वजह से जो सूचर्स है वो टाइट दिखेंगे और डब्ल्यूबीसी काउंट्स विल बी एलिवेटेड इंटरवेंशंस क्या करोगे आप व्हाट इंटरवेंशंस यू विल डू Temperature assess the monitor. temperature maybe, First assessment comes first, so we will assess the temperature. and Then reader score we are रीडा using. स्कोर यस रीडा स्कोर ऑफ द इंसिजन कहीं पे भी इंसिजन हो कोई भी सर्जिकल इंसिजन उसका हमें इन्फेक्शन है या नहीं और इट इज हेल्दी और नॉट वो चेक करने के लिए देर इज ओनली वन थिंग दैट इज रीडा स्कोर से आपको प्रॉपर पता चल जाएगा वेदर देर इज रेडनेस एरिथमा एकाइमोसिस ड्रेनेज सो विच टाइप ऑफ ड्रेनेज इज देयर अप्रोक्सीमेशन then if Uh, infection is present then we have to Assess ma'am, And drainage. I Mouth have one question. color. yes Harsh you मैम were ये saying जो रीडर स्कोर होते हैं मैंने पहले देखा नहीं है बट उसमें क्या होता है एक्चुअली उसमें कोई पॉइंट्स होते हैं पर्टिकुलर मतलब। यस इट इज जस्ट लाइक पॉइंट जब भी आप इंसिजन देखते हो सो रीडा स्कोर देना है सो वेदर देर इज रेडनेस तो 1 स्कोर वेदर देर इज एरिथमा और नॉट सो नो सो 0 यस तो 1 एकाइमोसिस इफ इट इज प्रेजेंट सो यस इफ इट इज नॉट देन नो 0 ड्रेनेज है तो कौन सा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज आर देयर सो यू हैव टू राइट इट इट्स लाइक अपगार स्कोर आपने देखा हाँ वो बच्चों वाला है स्मॉल। हाँ
सो जो हम पीडियाट्रिक में अपगार्ड स्कोर करते हैं तो देर आर डिफरेंट कैटेगरी, 0 1 2 3, बट इसमें 0 और 1 है, सो रीडा स्कोर हमें देना है। जस्ट लाइक प्यूपिल का जो असेसमेंट था, सो परला जो हम 4 लिखते थे, if it is completely healthy then we will write perla. So same that manner, rida score means whether there is redness present or not, so yes and no, erythema present or not, ecchymosis present or not, drainage if present, so which type of drainage you have to note down, and approximation of the wound edges, so whether it is perfect or any abnormality in the approximation. So this is how you have to examine the rida score, the incision. Understood? Yes. So, if there is a infection, you find out that patient is having infection from the redas code. So, you will notify the PHCP. जो भी ड्रेन्स लगाई है वो हमें चेक करना है कि ड्रेनेज अमाउंट कैसा है, पेटेंट है या नहीं, कलर कंसिस्टेंसी कैसा है वो. सो व्हाट यू हैव टू अज्यूम, अब क्या एंटिसिपेट करोगे, इन्फेक्शन है तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? फॉर वुंड कल्चर और मे बी फॉर Let's blood see. culture, any of the culture, the PHCP will prescribe you to go with the culture. But what one thing you have to keep in mind? Before administer antibiotic, first send blood culture. Yes. First, take the sample for blood culture or wound culture, then go for the antibiotics. पेशेंट को बहुत ही फीवर है, आपको आपने अभी तक ब्लड कल्चर या वुंड कल्चर के लिए सैंपल कलेक्ट नहीं किया, सो कैन यू गिव एंटीबायोटिक्स बिफोर कल्चर? Yes. यस और Antibiotics यस? are Yes. Antibiotics are There is no any specific things that we cannot give antibiotics. Antibiotics fever के लिए है, they will not affect the bacteria. So fever down करने के लिए हम antibiotics दे सकते हैं, but antibiotics will directly affect the bacteria. So antibiotic नहीं दे सकते. First we have to collect the sample, then you can give the antibiotic. So remember these things. They will ask you certain questions to confuse you. There is a tricky question कि ऐसा है, so don't get confused, stick to your point. Then we have seen the procedure. जब भी infection हो या कुछ भी patient को हो, तो we used to change the dressing and irrigate the dressing. So कैसे dressing change कैसे करना है, irrigation कैसे करना है, new dressing कैसे apply करना है, that we have completed. Then next is wound dehiscence and evisceration. What is wound dehiscence? suture line की wound की separation चाहिए. यस, सूचर्स ब्रेक हो जाएंगे और जो एजिस है वुंड की, दोनों एजिस विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सो दैट इज कॉल्ड एज वुंड डेहिसेंस. एंड व्हाट इज एविसरेशन? સૂચર સેપરેટ થયા પછી ઓર્ગન પ્રોટ્રુડ થઈ જાય અને यस, सूचर्स तो ब्रेक हो गए थे, वुंड एजिस भी सेपरेट हो गई थी, बट वन एक्स्ट्रा थिंग इज जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो प्रोट्रूड आउट हो गए, वो बाहर निकल गए, सो दैट इज कॉल्ड एज एविसरेशन. विच इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, डेहिसेंस और एविसरेशन? Evisceration. Evisceration is more critical because organs बाहर आ गए हैं. So what are the assessment finding, कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को एविसरेशन हुआ है? डेहिसेंस के साइन एंड सिम्टम्स और एविसरेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या थे? digestion માં drainage increase થશે. यस, डेहिसेंस में वुंड एजेस सेपरेट हो गई, सो पहले ड्रेनेज था, नाउ द ड्रेनेज हैज इंक्रीज, देन यू Appearance कैन of लिटरली underlying Open tissue. થશે. यस, यू कैन लिटरली सी कि वुंड एजेस ऐसे सेपरेट हो गए, आपको वुंड एजेस ओपन दिखेगी, अंडरलाइन टिश्यू वुंड एजेस ऐसे सेपरेट हो जाएगी तो नीचे की टिश्यूज आपको दिखेंगे, सो यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स. एविसरेशन में क्या होगा? Serosanguinous blood. सीरोसेंग्विनियस Fluid, फ्लूइड sorry. स्टार्ट होगा. पहले वो इंसिजन जहां पर सूचर्स लिए थे वो कंप्लीटली ड्राई था, कुछ भी वहां से निकल नहीं रहा था डिस्चार्ज, एंड सडनली वो उसमें से सीरोसेंग्विनियस फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो गया है, सो दैट इज एविसरेशन. देन पेशेंट क्या Abdominal कंप्लेन कर, control. यस Coughing आप देख, sensation. Complaints. आप देख पाओगे पेशेंट पहले कंप्लेन करता है कि मुझे कुछ ऐसे कॉफिंग करने पर या टर्निंग करने पर कुछ बाहर निकल रहा हो, ऐसा फील हो रहा है. when you open it you can see the abdominal contents like loop of the bowel or other contents are coming out, तो आपको बाहर दिखेंगे. इंटरवेंशन आपको क्या करनी है? फर्स्ट यू हैव टू
Stay Call with the for client. help. Stay with the client, yes, because client will also get panic. So first you have to stay with the client, then Call for help. yes, ask the another nurse, और अगर वो आपके पास नहीं है, so you can call another nurse. So call for help and ask that nurse to notify the PHCP and bring the necessary instruments. जो भी इंस्ट्रूमेंट सप्लाईज आपको लगेंगे वो मंगवा लो उससे, और पीएचसीपी को इन्फॉर्म करने के लिए उससे बोलो. देन पेशेंट को कौन सी पोजीशन दोगे आप? Low flower position. लो फाउलर्स The knee bent. नीज बेंड. ओके. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एविसरेशन है तो क्या करना है? वुंड कवर करवाना. यस, वी हैव टू कवर द वुंड विथ Sterile Sterile. normal saline. sterile one. नॉर्मल Correct. सलाइन. है, अगर वो ड्राई आउट हो जाएगा सो देयर माइट बी अ चांसेस ऑफ नेक्रोसिस. सो मेक श्योर कि आप स्टेराइल ऐसे एनएस वाला गॉस पीस करके उसको कवर कर दो. वाइटल साइंस लेने होंगे. क्लोजली मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक ना हो जाए, वो खास ध्यान रखो. और पेशेंट को एज सुन एज फटाफट जल्दी से सर्जरी के लिए प्रिपेयर करो. फिर से सर्जरी करनी होगी. सर्जरी इन द सेंस वो सब बैक टू नॉर्मल पोजीशन में रख के फिर से सूचर्स लेने होंगे. और ये सारा जो इंसिडेंट हुआ दैट यू हैव टू डॉक्यूमेंट. देन एम्बुलेटरी केयर फॉर डे वन सर्जिकल पेशेंट. सो एक दिन के लिए एडमिट होते हैं, उनको कैसे केयर करोगे? सो उनको कब डिस्चार्ज करोगे? व्हाट आर द क्राइटेरिया कि नाउ दे आर रेडी टू गो होम? Should be Fully awake. conscious, alert, and फुल्ली कॉन्शियस और अलर्ट. vital Vital signs. And baseline. नॉर्मल वाइटल साइंस, यस, एट द बेस लाइन जो भी उनके है वो. no vomiting, Respiratory values prescribed. नो वॉमिटिंग एंड minimal pain, मिनिमल पेन, यस. Has voided, voided. हैज voided, यस. no respiratory distress, नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. देन Able to ambulate. Yeah. yes, Able able to ambulate, walk, and yes. swallow and cough. Swallow and can cough. Then laboratory values normal, yes, normal laboratory values. Responsible adult available to drive with. Yes, there should be one person available with the client, so that person can take the client to the home or wherever he is staying, like any facility or anything. The surgeon Discharge has is signed to safe. Yes, and surgeon has signed the release form. Without signature, you cannot release the patient from the hospital. Then discharge teaching. Who will give the discharge teaching? RN. Yes. RN, RN. Yes. LPN can give. reading, Reinforce. Reinforce Oh, the discharge teaching. Yes. LPN can reinforce, not initiate the discharge teaching. Discharge teaching आप कब दोगे? before the scheduled just day procedure. before discharge. यस, बिफोर द स्केड्यूल्ड प्रोसीजर की डॉक्टर ने बोला है कि मंडे यू आर वी आर प्लानिंग टू डिस्चार्ज. सो और आपको पहले से ही पता है कि आफ्टर 2-3 days हो ही जाएगा. सो यू कैन डू द डिस्चार्ज टीचिंग 1 day, 2 day, 3 days अर्लियर. सर्जरी के तुरंत बाद पेशेंट 1 day स्टे है तो सर्जरी के पहले भी हम थोड़ा थोड़ा सिखा देंगे पेशेंट को, और सर्जरी के बाद जैसे ही पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है तब आपको देना है. बिफोर इनिशिएटिंग डिस्चार्ज टीचिंग व्हाट यू हैव टू सी कि पेशेंट अंडर लाइक पेशेंट इज रेडी टू लर्न समथिंग न्यू और नॉट. अगर पेशेंट ही रेडी नहीं है सो यू कैन नॉट गिव डिस्चार्ज टीचिंग, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम. आप कुछ भी बोलोगे पेशेंट सुनेगा ही नहीं, सो दैट इज यू कैन नॉट गिव. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि पेशेंट इज रेडी टू लर्न. सेकेंड, लैंग्वेज इज अवर important priority. If patient is non-English speaking, so what you will do? Professional Profit. interpreter. Yes, we will require professional Translator. interpreter. of sign Yes, language. yes. We cannot take help of another registered nurse who can speak 2 languages or patient's relative members. We cannot ask them to interpret or translate the discharge teaching. Then always use teach back method. जो भी आपने सीखा है, you have to ask the patient कि teach me back. So you can easily identify
देन जो भी थिंग्स ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत हो कि हाउ टू चेंज द ड्रेसिंग, हाउ टू अप्लाई मेडिसिन, हाउ टू टेक द मेडिसिन लाइक इंसुलिन और वैसी कोई मेडिसिन हो, तो वो सब डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है। सम पेशेंट्स ऐसे एनजी ट्यूब के साथ डिस्चार्ज होते हैं, सो यू हैव टू टीच द फैमिली मेंबर्स हाउ टू गिव द एनजी ट्यूब फीडिंग। सो ऐसी जो चीजें हैं वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बतानी है, यू कैन नॉट सिंपली टीच दैट। सो एक वर्ड की वजह से पूरा आंसर चेंज हो सकता है, टीच द फीडिंग और डेमोन्स्ट्रेट द फीडिंग। सो व्हाट यू विल सिलेक्ट? Demonstrate. Demonstrate. डेमोन्स्ट्रेट, आपको करके दिखाना होगा। यू कैन नॉट सिंपली जस्ट टेल कि ऐसा करो तो हो जाएगा। और डिस्टेंस टीचिंग में ध्यान रखना है कि मेडिसिन के रिलेटेड होगा, देन एक्टिविटीज रिलेटेड होगा, फॉलो अप खास होना चाहिए कि फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। देन विच थिंग्स दे कैन डू, विच थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन वो भी आपको सिखाना होगा पेशेंट को, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सर्जरी भी सिखाना होगा कि दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस। पेशेंट को घर जाके एब्डोमिनल पेन हो जाए, सो उसे पता होना चाहिए कि दिस इज द कॉम्प्लिकेशन, तो वो डायरेक्ट पीएससीपी को कॉल करे या फिर दिखाने के लिए आए। सो यू हैव टू टीच द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन। सो ये सारी चीजें आपको पेशेंट को सिखानी है। अंडरस्टूड? Yes. Yes. Okay. Any doubt in this chapter? No, no. Okay, so let's start new chapter. So next chapter is chapter 16. The name of chapter is Hygiene, Mobility and Skin Integrity. What are the priority concepts of this chapter? So mobility itself and skin integrity. Now in this chapter we will study about how to maintain the hygiene of patient, how to maintain a safe mobility movement of the patient, and how to maintain skin integrity. Skin integrity means intact होनी चाहिए, skin में कोई problem या damages, bed sores related in short, so ऐसा कुछ ना होना चाहिए। So this is our priority concept. Mobility, patient की mobility कैसे होनी चाहिए, क्या problems नहीं होने चाहिए, so this is our priority, and skin integrity is our priority. So let's study about hygiene first. Before that, the important red point is, Harshil, whenever you see the red point in your book or in the PPTs, it is so important point. NCLEX is focusing more on these points. So that's why the book has already marked it red. So जहां पर भी red point आपको दिखे, so understand कि this is so important for you. You cannot forget these points. Understood? Okay, ma'am. Okay. And let me tell you another thing. What do you mean by RN? RN means RN means register nurse. registered nurse. Yes. PHCP means Hmm, I don't primary know health. about it, ma'am. Yes. Primary health care provider. Primary health care provider. Okay. In simple terms, we can say that it's a medical officer जो भी hospitals में होता है वो. UAP means अनलाइसेंस अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सनल, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो, Oh, जो हम यहाँ पर हॉस्पिटल में अटेंडेंट्स देखते हैं, जो पेशेंट केयर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूएपी। एलपीएन मींस लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, जो आरएन के नीचे होती है। दे हैव सम अथॉरिटीज। आपने जो 7 चैप्टर देखा था यूएपी एलपीएन की डेलीगेशन कैसा वर्क कर सकते हैं, सो आपको पता होगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू सी द कंप्लीट दैट चैप्टर, सो आपको पता होगा कि एलपीएन क्या वर्क कर yes, सकते हैं, यूएपी क्या वर्क। यस। सो रिमेंबर दिस yes. पॉइंट कि कभी भी बीएचसीपी आए तो डोंट गेट कंफ्यूज। सो Okay, लेट्स okay. स्टार्ट the red point, important point. What is that? When providing nursing care, factors influencing hygiene needs to be considered. This may include social practices, personal preferences, body image, socio-economic status, health beliefs, cultural variables,
डेवलपमेंटल स्टेज एंड फिजिकल कंडीशंस। यस, जब भी आप पेशेंट को नर्सिंग केयर दे रहे हो, नर्सिंग केयर मीन्स सब केयर, सारी केयर दे रहे हो, सो हाइजीन के रिलेटेड जो भी फैक्टर्स है जिसकी वजह से हाइजीन को इन्फ्लुएंस होगा, वो सब आपको ध्यान रखना होगा। लाइक पेशेंट की सोशल प्रैक्टिसेस कैसी है। सम पेशेंट यूज टू टेक बाथ इन इवनिंग, सम पेशेंट यूज टू टेक बाथ इन मॉर्निंग। तो कैसी है उसकी सोशल प्रैक्टिसेस, कैसी है उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस, कैसे है कि when he or she wants to take a bath, रिलेटेड टू हाइजीन, कैसे उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस है, बॉडी इमेज वो कैसे मेंटेन रखना चाहता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। आप पेशेंट को बोलोगे कि ये करना है, ग्रूमिंग रिलेटेड ऑल दिस थिंग्स, बट पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, पेशेंट की हेल्थ बिलीफ्स कैसी है रिलेटेड टू हेल्थ, कल्चरल वेरिएबल्स। some cultures there is something like this should be followed. For example, in Hindus, they used to bath in morning and then go to the temple. So there are different practices. So cultural variables, developmental stage कौन सा है पेशेंट का, और फिजिकल कंडीशन कैसी है, पेशेंट फिजिकली फिट है ही नहीं, so patient cannot take bath by his or her own. So whenever you are providing nursing care, दिस आर द फैक्टर्स जो पेशेंट को हाइजीन, पेशेंट के हाइजीन पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रख के ही पेशेंट को केयर देनी है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. ओके, Yes, तो ma'am. लेट्स स्टडी अबाउट हाइजीन। हाइजीन में क्या चीज आएगी, आप कैसे हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। फर्स्ट एक तो एग्जांपल मैंने दे दिया कि बाथिंग, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइजीन। उससे अलावा क्या होगा, अदर थिंग्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन हाइजीन। Oral care, Oral care. ओरल केयर, यस। skin care, देन ओके, स्किन केयर, oral care, Hair wash. Hair wash. hair care, yes, nail care, nail care, yes, Perineal care is most important. yes, perineal care is also important, ड्रेसिंग, dressing, yes, फिर टीटी केयर, આપણે tracheostomy care કરીએ આવે. okay, that is not in the hygiene, Okay. yes, it is for the patient's Eye survival. care. Eye care. Sorry, Eye care. yes, eye care, another thing, Facial ulcer. sorry, Grooming. okay, grooming, dressing, okay, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कौन सी केयर, Foot Food care. care. Food care. फूड केयर, यस, yes, so these are the different types of care, so let's study एक each and every care हम डिटेल में स्टडी करेंगे, कैसे करनी है, क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, that we will study. So first is self care ability. पेशेंट खुद की केयर कैसे कर सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो हमें पहले चेक करनी है. So assessment of self-care ability involves checking muscle strength, flexibility, balance, visual acuity, and detection of thermal and tactile stimuli. पेशेंट की एबिलिटी कैसी है, खुद की केयर करने की एबिलिटी कितनी है, सो उसमें आप क्या चेक करोगे, पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ कैसी है, पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, पेशेंट प्रॉपरली उसके आर्म्स मूव कर सकता है या नहीं, पेशेंट का बैलेंस कैसा है, पेशेंट को दिखता कैसे है, पेशेंट थर्मल और टेक्टाइल स्टिमुलेशन पेशेंट का कैसा है, फॉर एग्जांपल पेशेंट वार्म, और उसके सेंसेशन जो टेक्टाइल स्टिमुलेशन में भी थर्मल स्टिमुलेशन है वो डीजनरेट हो गया है, सो पेशेंट को हॉट फ्लूइड पता नहीं चल रहा है, सो इट पेशेंट माइट गेट बर्न्स, सो वो भी हमें चेक करना होगा. ऑब्जर्विंग सेल्फ केयर ड्यूरिंग हाइजीन विल हेल्प टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ एक्टिविटी इंटॉलरेंस. यस, जब भी आप सेल्फ केयर, जब भी आप पेशेंट को हाइजीन देते हो और उसमें सेल्फ केयर आप ऑब्जर्व करोगे, सेल्फ केयर मीन्स पेशेंट खुद से कितनी केयर कर रहा है, खुद की सेल्फ केयर कैसे कर रहा है, वो आपको ऑब्जर्व करने से क्या पता चलेगा कि पेशेंट की एक्टिविटी इंटॉलरेंस कितनी है, कितनी एक्टिविटी वो कर सकता है, कितनी वो नहीं कर सकता, उससे आपको इजीली पता चल जाएगा.
Clients who have limitations in mobility and strength, vision, fine motor skills or activity intolerance will need assistance with hygiene. आपने पेशेंट की सेल्फ केयर ऑब्जर्व की, उसमें पता चला कि पेशेंट की मोबिलिटी भी थोड़ी लिमिटेड है, पेशेंट की स्ट्रेंथ भी लिमिटेड है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है, पेशेंट का विजन भी लिमिटेड हो गया है, इतना अच्छा विजन नहीं है, फाइन मोटर स्किल्स भी पेशेंट के लिमिटेड हो गए हैं, और एक्टिविटी इंटॉलरेंट है पेशेंट। सो उससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट को किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, देयर विल बी नीड ऑफ असिस्टेंस विद द हाइजीन, उसको हाइजीन मेंटेन करने के लिए एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये सब अच्छा है, सेल्फ केयर में मोबिलिटी स्ट्रेंथ विजन सब अच्छा है, सो पेशेंट खुद से अपनी हाइजीन मेंटेन कर पाएगा, देयर इज नो नीड ऑफ एनी असिस्टेंस। सो सेल्फ केयर आप असेस करोगे, उससे आपको पता चलेगा। The next red important point is activity intolerance may manifest by changes with respiratory and effort, rate and effort, skin color, pulse rate, complaints of dizziness, weakness or fatigue. एक्टिविटी इंटॉलरेंस आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये पेशेंट की एक्टिविटी इंटॉलरेंस है? सो फर्स्ट उसका रेस्पिरेटरी रेट और एफर्ट चेंज हो जाएगा। जस्ट गिव मी लेट मी गिव यू वन बेसिक एग्जांपल। जब कोविड था, कोविड के टाइम्स जिसको पेशेंट को कोविड से इन्फेक्शन था, वो थोड़ा भी ऐसे मूव होता हो, लाइक बेड से चेयर तक भी जाए, देन द पेशेंट गेट फटीग, वो बहुत थक जाता था, उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती थी। सो उससे पता चलेगा कि पेशेंट की एक्टिविटी टॉलरेंस बहुत कम हो गई है, सो पेशेंट इज एक्टिविटी इनटॉलरेंट, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा ज्यादा एक्टिविटी। जब ऐसे पेशेंट को आप हाइजीन के लिए नहलाओगे, मूव करोगे, सो पेशेंट थोड़ी देर में थक जाएगा, पेशेंट विल टेल यू कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा है, आई वांट टू स्लीप। जब आपको फीवर होता है, वीकनेस होती है, तो कैसा हो जाता है, थोड़ा भी काम करते हो थक जाते हो, सो दैट इज इनटॉलरेंस। तो कैसे पता चलेगा? पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट और एफर्ट चेंज हो जाएंगे, स्किन कलर चेंज हो जाएगा अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, पल्स रेट चेंज हो जाएंगे, डिजीनेस की कंप्लेन करेगा पेशेंट, वीकनेस की और फटीग की कंप्लेन करेगा। नेक्स्ट, हमने पहले सेल्फ केयर असेसमेंट कर लिया। नाउ फर्स्ट इज हाइजीन। इन हाइजीन द फर्स्ट टॉपिक इज बाथिंग। सो द टाइप्स ऑफ बाथ इंक्लूड्स कंप्लीट बेड बाथ, पार्शियल बेड बाथ, स्पॉन्ज बाथ एट द सिंक, टब बाथ, शावर, bag bath or travel bath, and chlorhexidine gluconate, that is CHG bath. So these are the different types of bath. आप कंप्लीट बेड बाथ भी दे सकते हो पेशेंट को, पार्शियल बेड बाथ दे सकते हो, स्पॉन्ज बाथ करवा सकते हो विद एट द सिंक, सिंक के पास ऐसे स्पॉन्ज बाथ जो कॉमनली यूज होता है, वो टब बाथ भी हो सकता है, शावर भी ले सकता है पेशेंट, बैग बाथ और ट्रैवल बाथ भी कर सकता है पेशेंट, और बाथिंग के जो भी बकेट है उसमें आप क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हो। Complete bed bath, tub bath, and shower can be exhausting for the client because oxygen consumption and demand increased. जो कंप्लीट बेड बाथ करवाते हो या टब बाथ करवाते हो पेशेंट को, या फिर शावर लेता है पेशेंट, सो इट कैन बी एग्जॉस्टिंग फॉर द क्लाइंट्स। उसमें जो पेशेंट बहुत ही वीक है, बीमार है, सो उससे वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, थक जाएगा, जल्दी थक जाएगा, बिकॉज ये सारी जो एक्टिविटीज है उसमें ऑक्सीजन कंजप्शन की डिमांड बढ़ जाती है ये एक्टिविटीज करने में। पार्शियल बेड baths are helpful for the clients who are in need of only partial hygiene or are partially dependent. पार्शियल बेड बाथ किन लोगों के लिए है? वैसे क्लाइंट जिनको पार्शियल थोड़ी ही हाइजीन रिक्वायरमेंट है, या फिर वो कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, दे आर पार्शियली डिपेंडेंट, उनके लिए हम पार्शियल बेड बाथ यूज कर सकते हैं। Bath basin with soap and water are usually no longer used. The basin serves as a reservoir for bacteria and can be a possible mode of transmission of infection. जो bath basin से with the soap and water, like जो भी बाथ बेसिन है, लाइक बेसिन फुल कर देंगे और सोप एंड वाटर से पेशेंट को क्लीन कर देंगे, अभी वो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होता। क्यों? बिकॉज जो बेसिन है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, और वो ही वाटर आप यूज करोगे, सो देर इज इजीली ट्रांसमिशन ऑफ द बैक्टीरिया और इन्फेक्शन, वो बहुत कॉमनली अब यूज नहीं होते। The use of CHG in place of standard soap and water has been shown to decrease the bacterial growth in wash basins. अब वॉश बेसिन में ऐसे पानी भर दोगे और उसमें क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट का सॉल्यूशन डाल दोगे, और उससे अगर पेशेंट की स्किन क्लीन करोगे, सो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाएगा, और वो बेसिन में आप कर सकते हो।
bath basins, if used, are not to be used as a place for supply storage and need to be directly dried completely after use. Yes, अगर आप bath basins यूज कर रहे हो, सो आप किसी सप्लाईज का स्टोरेज के लिए आप यूज नहीं कर सकते। जब भी आपने लाइक पेशेंट को क्लीन करना था, बाथ बेसिन है वो कंप्लीटली फुल कर दिया लॉक करके, जब भी काम आपका खत्म हो गया, सो इट शुड बी ड्राइड आउट कंप्लीटली। थोड़ा भी गीला होगा, सो देर इज अ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। Depending on the client's health problem, infection control measures need to be implemented as appropriate. Disposable items should be used if available, and wash clothes, towels, and linens need to be in place, appropriate receptacles after use. पेशेंट की कौन सी डिजीज कंडीशन है, डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ प्रॉब्लम, पेशेंट को कौन सा डिजीज हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर लेने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट टीबी वाला पेशेंट है और आपको उसको बाथ प्रोवाइड करना है। सो टीबी वाला जो कॉन्सेप्ट था इन्फेक्शन कंट्रोल वाला, जो हमने सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल चैप्टर देखा था वो था, और बाथिंग वाला कॉन्सेप्ट ये था। सो दोनों चैप्टर मिक्स करके आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ द पर्सन इज हैविंग टीबी, आपको उसको बाथिंग करवाना है, तो आप कैसा कौन से पीपीई किट आप वियर करोगे। सो क्या चीज आप पहनोगे, टेल मी। N95 mask. By mass, N95 मास्क इज मस्ट बिकॉज पेशेंट को कौन सा डिजीज कंडीशन है, TB. airborne, Droplet. एयरबॉर्न Oh, डिजीज sorry. कंडीशन। Airborne. Yes, TB is gloves, airborne. Then gloves, gloves, yes. cape, gown भी wear करे सकते हैं। Gown, yes, because patient को हम नहलाएंगे, so there might be chances of splashes on our clothes. So depending on the requirement, we will also require gown. Patient को सिर्फ आप इंजेक्शन या कुछ मेडिसिन देने गए हो जो टीबी वाला है, so in that case you will only require gloves and N95 mask. Understood? So depending on the client's problem, आपको कौन से इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स लेने हैं वो आपको ध्यान में रखना है। अगर कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन वाले को आप नहला रहे हो तो क्या चीजें ध्यान में रखोगे, Gloves must. ग्लव्स एंड गाउन, देयर इज नो नीड ऑफ मास्क बिकॉज वो कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस का है। और अगर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन वाले पेशेंट को आप नहला रहे हो तो mask, gloves, gown, Mask, gloves, विच मास्क, surgical mask, सर्जिकल surgical. मास्क, यस। सो थिंक अकॉर्डिंग टू दैट। सो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स प्रॉब्लम, हमें कौन से इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स यूज करने हैं, कौन सा पीपी किट विल रिक्वायर। यू कैन नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज। अगर गाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अननेसेसरीली आप गाउन वेस्ट नहीं कर सकते। सो बी वेरी माइंडफुल कि क्या चीज रिक्वायर है, गाउन कब पहनते हैं, ग्लव्स कब पहनते हैं, फेस शील्ड और गॉगल्स कब पहनते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो यू हैव टू सिलेक्ट द किट। अंडरस्टूड? yes ma'am, ओके, नेक्स्ट इज रेड पॉइंट। The nurse need to assess for any known allergies to soap or skin care products before performing hygiene care. Yes, हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट को किसी सोप से या कोई स्किन केयर प्रोडक्ट से एलर्जी है या नहीं, बिफोर परफॉर्मिंग हाइजीन केयर। अदरवाइज डायरेक्टली आप अप्लाई कर दोगे तो पेशेंट को एलर्जी हो जाएगी। एंड सेफ्टी इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, पेशेंट सेफ्टी इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। During bathing, the nurse needs to provide privacy, maintain safety and warmth, promote independence and anticipate client's need. जब भी आप पेशेंट को बाथिंग प्रोवाइड कर रहे हो, नहला रहे हो, सो पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी है, सेफ्टी भी मेंटेन करनी है, पेशेंट को इंजरी ना हो जाए, लाइक स्लीप ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो। और वार्मथ भी, ऐसा नहीं कि ठंडी लग जाए, पेशेंट को वार्मथ भी प्रोवाइड करनी है। जितना हो सके उतना इंडिपेंडेंटली पेशेंट को करने देना है। जहां पर पेशेंट को हेल्प लगेगी वहां पर ही आपको हेल्प करनी है। ऐसा नहीं कि लेट मी डू इट फॉर यू। मेंटेन द इंडिपेंडेंस, वी हैव टू प्रमोट द इंडिपेंडेंस एंड एंटिसिपेट द क्लाइंट्स नीड। एंटिसिपेट क्लाइंट नीड्स मीन्स क्लाइंट को क्या चाहिए होगा, क्लाइंट को क्या पसंद है, वो पहले से ही आपको सोच लेना है, अज्यूम कर लेना है। Perineal care involves cleansing the client's genital and anal areas. Perineal care needs to be done at least once per day and as needed. हर रोज, डेली, वंस इन अ डे एटलीस्ट, उससे कम नहीं, लाइक ट्वाइस इन अ
लाइक वंस इन 2 days ऐसा नहीं कर सकते, 2 दिन में एक बार, इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू डू पेरिनियल केयर वंस इन अ डे, एवरी डे एक बार तो करनी है, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है, यूटीआई है, तो आपको ट्वाइस और थ्राइस अ डे भी पेरिनियल केयर करनी होगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द नीड, बट बेसिकली अगर पेशेंट हेल्थी है तो भी एक बार तो करनी ही है। ड्यूरिंग पेरिनियल केयर द नर्स वुड असेस फॉर सोरनेस, excoriation, pain and odor and ask about burning during urination। जब भी पेरिनियल केयर आप दोगे पेशेंट को, सो यू हैव टू चेक सोरनेस। वहां पर सोरनेस ऐसे छाले तो नहीं हो गए ना, एक्सकोरिएशन स्किन पीलिंग तो नहीं हो गया है ना, पेन नहीं हो रहा है ना क्लाइंट को, कोई बहुत गंदी लाइक इन्फेक्शन है तो गंदी ओडर आ रही है, या फिर पेशेंट यूरिनेट कर रहा है सो बर्निंग सेंसेशन तो नहीं है ना, वैसा पूछना है पेशेंट को। Males who are uncircumcised, clients with indwelling urinary catheters, clients who had rectal or genital surgery, or women who are postpartum are at risk for infection। कौन से पेशेंट को इन्फेक्शन ज्यादा होगा पेरिनियल एरिया में? सो ऐसे मिल्स जो अनसर्कमसाइज है, लाइक सर्कमसिजन उनका हुआ नहीं है अभी तक। क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट जिसका ऑलरेडी यूरिनरी कैथेटर अटैच्ड है, ऐसे क्लाइंट्स जिनको रेक्टल और जेनाइटल सर्जरी की गई है, और ऐसी फीमेल्स जो पोस्टपार्टम है। सो इन लोगों को पेरिनियल इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा है। स्किन ब्रेकडाउन इन द पेरिनियल एरिया कैन अकर एंड नीड्स टू बी रेगुलरली असेस्ड। यस, जो पेरिनियल एरिया की स्किन है वो इजीली ब्रेकडाउन हो सकती है, सो रेगुलरली उनको असेस करना चाहिए। Clients at risk for perineal skin breakdown are those with urinary and fecal incontinence, surgical dressings in the area, indwelling urinary catheters and obesity। कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको पेरिनियल स्किन ब्रेकडाउन ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा है? सो जो भी पेशेंट है यूरिनरी एंड फीकल इनकॉन्टिनेंस, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को आपने डायपर पहनाया है या फिर सिर्फ मेलिना शीट आपने अप्लाई की है, सो पेशेंट जो फ्रीक्वेंटली इनकॉन्टिनेंट है, फ्रीक्वेंटली यूरिन पास कर रहे हैं, फीसिस पास कर रहे हैं, सो रेगुलरली क्लीन करने की वजह से स्किन निकल जाएगी, स्किन ब्रेक डाउन हो जाएगी, बिकॉज बार बार आपको क्लीन करना पड़ रहा है, वाइप करना पड़ रहा है, तो देर विल बी रैशेस और स्किन ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जहां पर ऐसे सर्जिकल ड्रेसिंग है इन द पेरिनियल एरिया, ऑलरेडी इन ड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर है, तो स्किन ब्रेक डाउन हो सकती है। और जो पेशेंट ओबेस है, ओबेसिटी की वजह से क्या होगी, उनकी थाइस एक एक दूसरे से ज्यादा रब Fiction. होगी, तो जिसकी यस फ्रिक्शन की वजह से उनकी स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है। तो दिस आर द रीजन कि ये पेशेंट में पेरिनियल स्किन ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। Last important red point is embarrassment should not cause the nurse to look over a client's hygiene needs। क्लाइंट की हाइजीन नीड्स ये सारी देखने के लिए हमें एम्बेरसमेंट फील नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर द बेसिक नीड्स ऑफ द क्लाइंट। सो वो हमें कंप्लीट करनी है, वी शुड नॉट फील एम्बेरसमेंट। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज स्किन केयर, बाथिंग हो गया, नाउ हाइजीन में स्किन केयर भी इंपॉर्टेंट है। सो ड्यूरिंग हाइजीन स्किन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइजीन मेजर्स आर असेस्ड। जब भी आप हाइजीन के लिए देखते हो तो स्किन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हाइजीन में चेंजेस होंगे, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे हाइजीन को। सो ये सारे हमें देखने हैं, असेसमेंट करना है। सो लेट्स सी बॉक्स 16.1, स्किन असेसमेंट ड्यूरिंग हाइजीन। जब भी आप पेशेंट को हाइजीन प्रोवाइड करते हो तो स्किन में क्या असेसमेंट करोगे जिसकी वजह से हाइजीन इम्पेयर हो सकती है? सो फर्स्ट, नोट कलर, टेक्सचर, थिकनेस, टर्गर एंड टेम्परेचर। स्किन का कलर देखना है, स्किन का टेक्सचर देखना है कैसा है, स्किन की थिकनेस देखनी है, टर्गर, टर्गर मीन्स न्यू स्टूडेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय टर्गर? ओल्ड स्टूडेंट्स व्हाट इज टर्गर? स्किन Elasticity. टेंटिंग છે કે નહીં? Yes, elasticity. So we have to note the elasticity and temperature of the skin. Check for lesions, dryness, scaling and cracking। जब भी आप कहीं पे भी हेड टू टो में जो भी स्किन असेस कर रहे हो, सो वेदर देयर इज एनी लीजन, कहीं पे लीजन है, ड्राइनेस है स्किन में, स्केलिंग्स हो गया है या क्रैक्स हो गए हैं स्किन में, सो ये सब आपको चेक करने हैं। Carefully assess the skin in contact with any device such as oxygen tubing,
फीडिंग ट्यूब, ऑर्थोपेडिक डिवाइस, एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स एंड प्रेशर एरियाज, जो ऐसे किसी डिवाइस के कांटेक्ट में हो। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क पहनाया है, सो उसकी जो ऐसी रस्सी होती है वहाँ ऐसे चिक्स पर होके कान के पीछे जाएगी, तो पेशेंट को वहां पर रेडनेस और इरिटेशन हो सकता है। अगर नेजल प्रॉन्ग्स डाले हैं सो वो ट्यूबिंग ऐसे मूव करके पीछे जाएगी, तो अगर ऐसे ही यहाँ पर फ्रिक्शन होता रहेगा तो स्किन ब्रेक डाउन होगी। सो ऑक्सीजन ट्यूबिंग, फीडिंग ट्यूब भी हमें पता है कि हम ऐसे नोज पर स्टिक करके कान के पीछे रख देते हैं, स्टिक कर देते हैं। कोई भी ऑर्थोपेडिक डिवाइस है, एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स है या फिर प्रेशर एरिया, सो वहां पर बहुत केयरफुली आपको असिस्ट करना है, बिकॉज दिस आर द प्रोन एरियाज फॉर स्किन ब्रेकडाउन। Focus on hard to reach areas and skin folds, including the perineum and under the breast. ऐसे जो एरियाज है जहां पर आप इजीली रीच आउट नहीं कर सकते, ऐसे इजीली देख नहीं सकते, लाइक स्किन फोल्ड्स है तो इजीली नहीं पता चलेगा, तो वहां पर ज्यादा फोकस करो, बिकॉज स्किन फोल्ड्स है, सो वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ, फ्रिक्शन, स्किन ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, लाइक पेरिनियम और अंडर द ब्रेस्ट। असेस फॉर द साइंस ऑफ इम्पेयर्ड सेंसेशन, सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन और हाइजीन। पेशेंट का स्किन टेक्टाइल सेंसेशन कैसा है वो असेस करना है, सर्कुलेशन कैसा है, अगर सर्कुलेशन इम्पेयर हो जाएगा तो जब भी स्किन आप टच करोगे सो इट विल बी कोल्ड एंड क्लेमी स्किन। न्यूट्रिशन कैसा है, अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा सो देयर विल बी अ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। सो न्यूट्रिशन कैसा है, स्किन की हाइजीन कैसी है, वो सब आपको चेक करना है। असेस फॉर द साइन ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स केयरफुली इन द डार्कर स्किन डिक्लाइन। यस, हमने ऑलरेडी ये असेसमेंट में देखा था कि जो डार्कर स्किन, जिसका स्किन कलर डार्क है, जो डार्क टोन वाले हैं, तो उसमें स्किन प्रॉब्लम्स आपको अलग मेथड से चेक करने होंगे। यू कैन नॉट इजिली फाइंड आउट, उनका स्किन कलर डार्क है इसलिए, तो उनमें बहुत अच्छे से आपको केयरफुली असेसमेंट करना है। नोट एनी ओडर्स ड्यूरिंग असेसमेंट, जब भी आप स्किन असेसमेंट कर रहे हो और आपको कोई ओडर आ रही है सो नोट इट कि ऐसी ओडर आ रही है। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर फॉर स्किन प्रॉब्लम। क्या रिस्क फैक्टर है, किसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। सो फर्स्ट तो इमोबिलाइजेशन, बहुत टाइम से पेशेंट इमोबाइल है, बेड रीडन है एक ही एक पोजीशन में, तो उससे स्किन प्रॉब्लम्स होगी, लाइक बेड सोर्स हो सकता है। ओवरवेट और ओबेस क्लाइंट हो, सो उससे भी पेशेंट के प्रेशर प्रोन एरिया में ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, बिकॉज पेशेंट इज ओवरवेट एंड ओबेस। रिड्यूस सेंसेशन रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, पेशेंट का सेंसेशन रिड्यूस हो गया है, पेशेंट को अभी सेंसेशन नहीं आ रहा है, टेक्टाइल स्टिम्युलेशन कम हो गया है, टच का सेंसेशन, सो पेशेंट को गर्म चीज से बर्न्स हो सकते हैं, या पेशेंट को कहीं पर भी इंजरी होगी पर पेशेंट को सेंसेशन ही नहीं आ रहा है कि उसकी स्किन पर इंजरी हो रही है। ऑल्टर कॉग्निशन फ्रॉम डिमेंशिया और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसका कॉग्निशन ऑल्टर हो गया है, लाइक डिमेंशिया की वजह से या कोई अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से उसका कॉग्निशन लेवल ऑल्टर हो गया है, उसको पता नहीं चल रहा कि ये चीज करने से मेरी स्किन डैमेज हो रही है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, प्रॉपरली खाना नहीं खा रहा, प्रॉपर हाइड्रेटेड नहीं है, सो भी उसकी स्किन अच्छी नहीं होगी। एक्सेसिव सिक्रीशन फ्रॉम पर्सपिरेशन, यूरिनेशन, डेफिकेशन एंड वुंड ड्रेनेज, कहीं से भी एक्सेसिव सिक्रीशंस हो रहे हैं, लाइक पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, तो भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए पेशेंट ऐसे बेड पर होगा तो ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। यूरिनेशन के थ्रू, तो पेरिनियल एरिया में, डेफिकेशन से पेरिनियल एरिया में स्किन ब्रेकडाउन होगा। और जही कहीं पे भी वुंड इंसिजन है, सो वुंड ड्रेनेज भी अगर एक्सेसिव हो रहा है तो उससे भी स्किन डैमेज हो सकती है। यूज ऑफ मेडिकल डिवाइसेस दैट कैन कॉज स्किन इंजरी, कोई ऐसे मेडिकल डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर रहे हो जिसके फ्रिक्शन की वजह से स्किन इंजरी हो रही है। वेस्क्यूलर इनसफिशिएंसी की वजह से भी स्किन डैमेजेस हो सकती है। वेस्क्यूलर इनसफिशिएंसी मीन कुछ टाइटली आपने टाई कर दिया है, या फिर पेशेंट के जो वेसल्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, लाइक पेरिफेरल वेस्क्यूलर डिजीज है, सो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है, सो उसमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई लास्ट तक पहुंचेगा नहीं और ये जो लास्ट वाली फिंगर्स की स्किन है वो डैमेज हो जाएगी। सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स कि जिसकी वजह से स्किन डैमेज होती है। व्हाट आर द कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स, कौन से कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे पेशेंट में। सो ड्राई स्किन देखने को मिलेगी, एक्नेस देखने को मिलेगी, स्किन रैशेस देखने को मिलेंगे, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस मिलेगा देखने को, एब्रेशंस देखने को मिलेगी स्किन पर, सर्जिकल इंसिजंस की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स, दैट इज सर्जिकल इंसिजंस
और वुंड्स, ये सब आपको कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जो आपको देखने को मिलेगी। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. So let's take a short break. Then we will go for foot and nail care. Online students, please come back from break. Should we start now? Am I audible to you? यस। Okay. So should we start now? Yes, ma'am. Okay. So next is foot and nail care. तो कैसे फुट एंड नेल केयर करनी है, क्या चीज ध्यान में रखनी है, लेट्स स्टडी अबाउट दैट। एग्जामिनेशन ऑफ द फीट इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग हाइजीन केयर सो दैट nail and foot conditions can be detected early on। जब भी आप हाइजीन दे रहे हो, पेशेंट की हाइजीन के लिए ध्यान रख रहे हो, तो फीट का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप फुट की कंडीशन, नेल की कंडीशन, आप कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन है तो आप इजीली अर्ली उसको डिटेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी बॉक्स 16.2, फुट एंड नेल असेसमेंट कैसे करना है। जस्ट लाइक स्किन असेसमेंट हमने देखा था, तो examination needs to include inspection of the nails and all surfaces of the feet, particularly between the toes and the soles of foot। एग्जामिनेशन फुट और नेल का असेसमेंट में सिर्फ लाइक इंस्पेक्शन यूज होगा। सो इंस्पेक्शन क्या करोगे आप, सो आपको देखना है नेल्स कैसे है, सरफेसेस कैसी है फीट की, वो चेक करना है। और सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली कहाँ पर चेक करना है, सो बिटवीन द टोज, दो उंगलियों के बीच का जो सरफेस होता है वहां पर ज्यादा चेक करना होता है, बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। वहां पर डिजीज कंडीशंस, प्रॉब्लम्स लाइक रीन गार्ड और वैसे सब वहां पर ज्यादा होता है, तो वो आपको चेक करना है। सोल ऑफ द फुट आपको एग्जामिन करना है। Problems with dryness, inflammation, cracking, and lesions should be noted and may be sign of an acute or chronic foot problem। फुट में अगर ड्राइनेस है, इन्फ्लामेशन है, क्रैकिंग्स देखने को मिल रहा है, लीजन्स देखने को मिल रहा है, सो इट शुड बी नोटेड। इट मे बी, दे आर नॉट सेइंग कि ऑलवेज इट इज अ साइन ऑफ एनी एक्यूट और क्रोनिक फूड प्रॉब्लम, बट इट मे बी अ साइन ऑफ एक्यूट और क्रोनिक फूड प्रॉब्लम। पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट को इंजरी है, सो आपको वो पहले से ही नोट करना होगा। पेन और डिस्कम्फर्ट एंड ऑल्टर गेट में सिग्निफाई अ प्रॉब्लम विथ फीट और नील्स। पेशेंट को पेन हो रहा हो, डिस्कम्फर्ट हो रहा हो और उसका गेट ऑल्टर हो गया हो, गेट मीन्स Posture. ओके, नॉट स्पेसिफिकली पोस्चर। वॉकिंग कर रहे वॉकिंग एबिलिटी, यस, वो चल कैसे रहा है। गेट नॉर्मल होना मीन्स नॉर्मल चलना, गेट एबनॉर्मल होना मीन्स वो नॉर्मल वे में नहीं चल रहा है, उसकी चलने की टेक्निक चेंज हो गई है। सो दैट एनी ऑल्टर गेट, ये सब दिखने को मिले पेशेंट में, सो इट इंडिकेट्स कि पेशेंट के फीट और नील्स में कुछ प्रॉब्लम है। Assessment focuses on palpation of the pedal pulses, light touch and pin prick sensation, temperature and gait। दूसरा क्या असेसमेंट करोगे, तो जो पेडल पल्सेस है वो आप चेक करोगे, लाइट टच करोगे पेशेंट को टू सी कि पेशेंट को लाइट टच का सेंसेशन है या नहीं। पिन प्रिक सेंसेशन आप चेक करोगे। पिन प्रिक सेंसेशन मीन्स कुछ शार्प ऑब्जेक्ट लेके आप पेशेंट को प्रिक करोगे, सो पेशेंट को ऐसे फीलिंग आ रही है, सेंसेशन है या नहीं, वो चेक करना है। टेम्परेचर का सेंसेशन हमें मतलब चेक करना है, असेस करना है, और पेशेंट को भी है या नहीं वो चेक करना है, और उसका गेट भी चेक करना है। सो दिस आर द असेसमेंट ऑफ फुट મેમ एंड नेल। यस, પેલું પરકશન હેમરની પાછળની સાઈડ થી ચેક કરે છે એ જ ને પિંક. यस, हाँ ना, दैट इज नॉट पिन प्रिक, ઓકે इट इज अ सॉफ्ट ब्रश। वो हम टिंगलिंग सेंसेशन के लिए यूज करते हैं, ऐसे हम सॉफ्ट टच करने के लिए, जो हमने ऑलरेडी असेसमेंट में ઓકે देखा था कि एक सॉफ्ट कुछ ब्रश जैसा लोगे आप, चेक करने के लिए कि सॉफ्ट सेंसेशन कहाँ पर है और पिन सेंसेशन कहाँ पर है। तो वो जो हैमर के पीछे होता है वो सॉफ्ट होता है, दैट इज नॉट पिन प्रिक। पिन ઓકે प्रिक मीन्स समथिंग शार्प। ઓકે ओके, कॉमन फुट एंड नेल प्रॉब्लम्स, कौन से प्रॉब्लम्स कॉमन है फुट रिलेटेड और नेल रिलेटेड, तो कैलस। कैलस मीन्स પેલું कैलस, હાર્ડ થઈ જાય છે ને લાઈક કણી કણી ગુજરાતીમાં. ये आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, जो हम लिखने की वजह से हमारी फिंगर्स पर ऐसे कैलस फॉर्मेशन हो जाता था कंटिन्यूअस लिखने की वजह से। जो जिम करते हैं, जिम करने की वजह से
उनके फिंगर्स में ऐसे हार्डनेस हो जाती है स्किन, सो इट इज कॉल्ड एज कैलस. व्हाट इज कॉन? सॉरी, कॉन्स मीन्स व्हाट इज कॉन्स? जो आपने कहा कणी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स. अंडरस्टूड? Callus means hardening of the skin, and cons means you can feel there is something present in the skin. So that is called as Okay. cons. Yes. What is plantar warts? Plantar means they are talking about feet, hand, feet. Okay. And what वो हम जब मैंने बोला था स्किन का चैप्टर दिखा चल रहा था, तब मैंने बोला था देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजन्स, यू हैव टू रिमेम्बर. सो उसमें वॉट आता है. सो प्लांटर वॉट्स मीन्स ફૂટના ભાગમાં પેલું પાણી જેવું females females experience warts, plantar warts during Navratri. So what is that? जबड़े कहीं कहीं ફોલ્લા फूलों પડે पड़े પેલું ફોલ્લા हाँ, પડી तो ऐसा बोलते हैं ना, छाले हो जाते हैं पैर में, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स हो जाते हैं. सो फ्लूइड फिल्ड large blisters are called as warts. So plantar warts, these are the common problems. Tinea pedis, what is that? Tinea pedis, there is an inflammation or infection between two toes. ये जो दो टोज होते हैं उसके बीच में इंफेक्शन हो जाता है. एथलीट्स फुट उसकी क्यों बोला जाता है? बिकॉज एथलीट्स आर मोर प्रोन फॉर दिस इन्फेक्शन, बिकॉज उनको मोस्ट ऑफ द टाइम्स शूज और वैसा सब वेयर करके रखना पड़ता है. सो वहां पर मॉइस्चर की वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाएगा बिटवीन द टोज. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एथलीट्स फुट और टीनिया पैडीज. इनग्रोन नेल्स, व्हाट इज दैट? Ingrown nails means ingrown nails. No idea. Its name is suggesting. નેલના એજીસમાં ગ્રોથ થાય Yes. जब भी आप नेल्स ऐसे कट करते हो, सो फुट में ज्यादा कॉमन है. फुट का जो लार्जर टो है, जो अंगूठा है, उसके नेल्स अगर प्रॉपरली कट नहीं होंगे, उसकी एजिस अगर ऐसे, बिकॉज जो फुट का नेल होता है ना, वो ऐसे शेप का होता है. इफ यू सी, जो फुट का नेल होगा वो ऐसे शेप का होगा. नेल, दिस इज द नेल ऑफ द टो. ये नेल है. तो अगर आप प्रॉपर उसको कट नहीं करोगे, ट्रिम नहीं करोगे, सो ये नेल फुट में ही ग्रो होने लगेगा अंदर की तरफ. पेशेंट को पेन क्रिएट कराएगा, ज्यादा ऐसे कर्व हो जाएगा तो पेशेंट के फुट में ही जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज इनग्रोन नेल्स. देन पैरोनशिया मीन्स, पैरोनीशिया मीन्स दिस इज द फिंगर, दिस इज द नेल. सो ये फिंगर के पीछे जो साइड सरफेस होती है, वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा. जो उसके पीछे की, उसके साइड की जो सरफेस है, सराउंडिंग सरफेस, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज पेरोनीशिया. फूड ओडर्स मीन्स फूड में से जो सॉक्स की वजह से और वैसी गंदी स्मेल आती है, जस्ट लाइक दैट. सो फूड ओडर्स. सो दिस आर द कॉमन फूड और नेल प्रॉब्लम्स. ये सारे आपको याद रखने. अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि पेशेंट केम when you are doing assessment of feet, or when you are giving hygiene or giving nursing care, you noticed tinea pedis, plantar warts, एग्जाम में ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टूड कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. सो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. एग्जाम में सिंपल टर्मिनोलॉजी नहीं होगी, ये ही वर्ड्स होंगे. सो यू कैन
गूगल इट, उसके इमेजेस देख सकते हो आप, और यू हैव टू सिंपली रिमेम्बर दिस। Okay. To perform routine foot and nail care, soak the hands and feet dry thoroughly and trim the nails except for those clients with diabetes mellitus or peripheral vascular disease. जब भी आप फुट और नेल केयर करने वाले हो तो कैसे करनी है? फर्स्ट यू हैव टू सोक द हैंड्स एंड फीट। दोनों नेल्स केयर करनी है तो सारे सिर्फ फीट की नेल नहीं कट करोगे, आप हैंड के भी कट करोगे और फीट केयर प्रॉपरली दोगे। सो हैंड्स और फीट आपको ल्यूक वार्म वाटर में सोक करने हैं। थोड़ी देर के लिए सोक करने के बाद उसको थोरली ड्राई करना है, कंप्लीटली ड्राई करना है। गीले हाथ पैर में आप केयर नहीं दे सकते, सो यू हैव टू ड्राई इट थोरली। ट्रिम द नेल्स, नेल्स को है वो ट्रिमिंग करना है, बहुत डीपली अंदर कट नहीं करना है। वी हैव टू सिंपली ट्रिम द नेल्स फॉर हैंड्स एंड लेग्स एक्सेप्ट फॉर दोज क्लाइंट विद डायबिटीज मेलिटस और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। डायबिटीज मेलिटस वाले क्लाइंट होते हैं, उनमें बहुत केयरफुली आपको करना है। यू कैन नॉट डू ऑल दिस प्रैक्टिसेस बिकॉज उनमें थोड़ी भी इंजरी हो जाएगी। डायबिटिक फुट इज वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन द डायबिटिक पेशेंट। सो उसमें थोड़ी भी इंजरी हो जाएगी तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जिनको पेरिफेरल वेस्क्यूलर डिजीज है, डायबिटिक मेलिटस है, तो उनमें बहुत ध्यान रखना है, ये सब उनमें नहीं करोगे आप। नेक्स्ट रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज when providing hygiene care to the client with diabetes mellitus or peripheral vascular disease, the feet would not be soaked and nails would not be trimmed. And the primary healthcare provider or podiatrist जो नेल्स की और फीट्स की केयर करते हैं उनको बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट, वुड बी कंसल्टेड फॉर फूड केयर इफ नीडेड। अंडरस्टूड? जो भी पेशेंट को ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज मेलिटस और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, सो उसको आप फुट केयर नेल केयर नहीं दोगे। उसके फीट गीले पानी में सोक भी नहीं, मतलब उसको पानी में भी सोक नहीं करना है, उसके नेल्स भी ट्रिम नहीं करना है। उसके लिए कौन केयर करेगा? जो पेशेंट डायबिटिक है या जिसको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, उनकी नेल और फुट केयर कौन करेगा? या तो पीएचसीपी पोडियाट्रिक और यस पोडियाट्रिस्ट, नॉट पीडियाट्रिक। हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज अ पोडियाट्रिस्ट। जो पोडियाट्रिक फुट, यस, फुट और नेल्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज पोडियाट्रिस्ट। तो पीएचसीपी विल केयर और पोडियाट्रिस्ट विल बी जो विल केयर फॉर द फुट एंड नेल। अगर जरूरत पड़ी तो वो केयर करेंगे, नॉट रजिस्टर्ड नर्स। The feet needs to be washed daily with lukewarm water and dried thoroughly, paying attention between toes. Yes. उनके फीट की केयर कैसे करनी है? सो डेली उनको ल्यूक वार्म वाटर से वॉश करना है और कंप्लीटली ड्राई करना है, खास करके बिटवीन द टोस, जो पैर की फिंगर्स होती है उसके बीच में खास ड्राई करना है, बिकॉज थोड़ा भी मॉइस्चर रह जाएगा सो देयर विल बी अ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Long socks and harsh chemicals needs to be avoided because macerations and infection could occur. जो बहुत लंबे लंबे सॉक्स होते हैं वो नहीं पहनाने हैं, और कोई भी हार्श केमिकल्स लाइक जो क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स होते हैं बट वो बहुत ही हार्श, ऐसे केमिकल्स नहीं यूज करने, उससे मैसरेशन, पेशेंट को ईचिंग या फिर स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है या इन्फेक्शन भी हो सकता है। Lotions needs to be applied on feet, avoiding in between the toes. पूरे फीट पर लोशंस लगाना है बट बिटवीन द टोज नहीं लगाना है। Toenails would be trimmed straight across the edges, filed unless the client has diabetes mellitus or PVD, in which a podiatrist would be consulted. मैंने बोला था इनग्रोन नेल सबसे ज्यादा जो लार्जर टो है उसमें ज्यादा होता है। सो वो टो नेल्स है सारे फिंगर्स के। तो वो कैसे कट करने हैं? सो स्ट्रेट कट करने हैं बिकॉज दे आर कर्व्ड। स्मॉलर टोज के तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, वो ऑलरेडी स्ट्रेट होता है, बट जो लार्जर टो होता है उसका कर्व्ड होता है टो नेल। तो उसको स्ट्रेट अक्रॉस हमें ट्रिम करने हैं और उसकी जो एजिस है उसको फाइलिंग कर देना है प्रॉपर, सो वो इनग्रोन ना हो जाए और पेशेंट को ऐसे हार्म ना करे। और जिसको भी डायबिटीज है, पीवीडी है,
उसमें तो पोडियाट्रिक्स ही करेंगे। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स आर अवॉइडेड एंड वेल फिटिंग शूज नीड्स टू बी वॉर्म। पेशेंट को बोलना है कि टेम्परेचर एक्सट्रीम्स अवॉइड करना है। सो ज्यादा कोल्ड ज्यादा हॉट दोनों अवॉइड करना है, दोनों टेम्परेचर एक्सट्रीम हमें अवॉइड करना है, पेशेंट को ऐसा एडवाइस देना है। और वेल फिटिंग शूज पहनना है, बहुत ज्यादा भी फिट भी ना होने चाहिए या लूज भी नहीं, वेल फिटेड शूज होने चाहिए। टू प्रिवेंट इंफेक्शन एंड प्रेशर एरियाज, clean absorbent cloth socks that have no seams or have not been mended need to be worn by the client with diabetes mellitus or peripheral vascular disease. इन्फेक्शन ना हो, प्रेशर क्रिएट ना हो, लाइक प्रेशर सोर्स और ऐसे ना हो। सो उसकी वो प्रिवेंट करने के लिए क्या एडवाइस देना है पेशेंट को कि क्लीन और एब्जॉर्बेंट कॉटन सॉक्स पहनो। दूसरे मटेरियल के सॉक्स में क्या होगा कि स्वेटिंग होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो कॉटन सॉक्स पहने जो भी एब्जॉर्ब कर ले स्वेटिंग और वो सब। वैसे सॉक्स पहने हैं जिसमें कुछ फटा हुआ ना हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसे सॉक्स पहनने हैं जो भी पेशेंट डायबिटिक है और जिनको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, तो इन लोगों को ऐसे सॉक्स पहनने हैं। नेक्स्ट इज ओरल केयर। ओरल केयर में हमें क्या ध्यान रखनी है? सो ओरल हाइजीन प्रमोट्स कंफर्ट एंड इम्प्रूव्स एपेटाइट। अगर ओरल हाइजीन अच्छी होगी पेशेंट की तो उससे पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा। सो उसकी कंफर्ट इंप्रूव होगी और एपेटाइट भी इंप्रूव होगी। अगर पेशेंट की ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है तो पेशेंट को खाने का भी मन नहीं होगा। ओरल हाइजीन अच्छी होगी तो पेशेंट को खाने का भी मन होगा। सो इट इम्प्रूव्स एपेटाइट ऑल्सो। रूटीन ओरल केयर इंक्लूड्स ब्रशिंग, फ्लॉसिंग एंड रिंसिंग। रूटीन ओरल केयर में क्या आता है? सो ब्रशिंग आता है, फ्लॉसिंग आता है और रिंसिंग आता है। सिर्फ माउथ वाटर से या फिर जो ऐसे गार्गल्स आते हैं उससे रिंस कर सकते हैं। रूटीन ओरल केयर एंड ब्रशिंग विथ फ्लोराइड टूथपेस्ट नीड्स टू बी डन ट्वाइस अ डे। डेली रूटीन ओरल केयर में ब्रशिंग करना है। कौन सी पेस्ट से ब्रश करना है? जिसमें फ्लोराइड हो। सो दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे प्रॉपर ब्रशिंग करना चाहिए। Using mouth rinse is helpful in preventing tooth decay. Alcohol-free mouth rinses needs to be used. Yes. जो भी माउथ रिंसेस अभी मार्केट में आते हैं, सो इट इज हेल्पफुल टू प्रिवेंट द टूथ डीके। टूथ डीके ना हो इसके लिए करना चाहिए। बट मेक श्योर कि जो भी आप माउथ रिंसेस यूज कर रहे हैं पेशेंट, वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए। चेक फॉर ओरल लीजन्स और लीजन्स ऑन द लिप्स और अराउंड द माउथ। कोई भी ओरल लीजन्स है, लाइक टंग पर है, लिप्स पर है, चिक्स पर है, कहीं पे भी मुंह में लीजन्स है कुछ भी, सो वो भी चेक करने हैं व्हेन यू आर गिविंग द ओरल केयर टू द पेशेंट। Commercially made foam swabs are ineffective in removing plaque from the teeth. ऐसे रेडीमेड, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडीमेड ऐसे कॉमर्शियली स्वेब्स आते हैं। जो हम ईयरबड्स कैसे होते हैं वैसे स्वेब्स आते हैं। क्यों आते हैं? कि वो जो प्लेग हो जाता है टीथ पर वो रिमूव करने के लिए आते हैं। बट वो इतने इफेक्टिव नहीं है, वो सारा प्लेग रिमूव नहीं करेंगे पेशेंट को। लाइक आप सिंपली पेशेंट की ओरल केयर कर रहे हो और प्लेग रिमूव करने के लिए आपने सिर्फ वो स्वेब यूज कर लिया, सो इट वोंट बी दैट मच इफेक्टिव। Flossing with unwaxed flocks would be done when performing mouth care before and after brushing. ब्रशिंग करने से पहले, ब्रशिंग करने के बाद फ्लॉसिंग करना चाहिए। बट कैसा फ्लॉस? जो फ्लॉसिंग हो, फ्लॉस होता है वो कैसा होना चाहिए? अनवैक्स्ड होना चाहिए वो फ्लॉस। Avoid vigorous flossing, especially with the clients who are receiving chemotherapy or radiation or who are on anticoagulant therapy. विगरस फ्लॉसिंग नहीं करना चाहिए। विगरस फ्लॉसिंग से क्या होगा? गम्स में से ब्लीडिंग हो सकता है। जो भी क्लाइंट कीमोथेरापी रिसीव कर रहे हैं या रेडिएशन थेरापी रिसीव कर रहे हैं या फिर कोई क्लाइंट एंटीकोएगुलेंट थेरापी पर है, तो उनमें विगरस फ्लॉसिंग अवॉइड करना है। इससे अलावा कौन से पेशेंट्स में आप विगरस फ्लॉसिंग अवॉइड करोगे? प्लेटलेट काउंट ओछा हो। प्लेटलेट्स काउंट जिससे कम हो, जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो। नॉट ओनली कि जो एंटीकोएगुलेंट थेरापी पर है, रेडिएशन कीमो, जो ऑलरेडी पेशेंट ऐसे हैं कि जिनकी प्लेटलेट काउंट कम है या फिर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो सारे पेशेंट में रिस्क ज्यादा है ब्लीडिंग का, सो विगरस फ्लॉसिंग वुड बी अवॉइडेड इन दोस पेशेंट। क्लाइंट विद स्पेशल ओरल हाइजीन नीड्स। कौन से क्लाइंट्स को ज्यादा स्पेशल ओरल हाइजीन नीड्स लगेगी? दैट विल सी इन बॉक्स 16.3। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रेड पॉइंट इज
Oral care with a chlorhexidine gluconate products reduces the risk of ventilator assisted pneumonia. आपने देखा होगा क्लोरेक्सिडिन के सॉल्यूशंस आते हैं जस्ट लाइक बीटाडीन, बीटाडीन जैसा दिखता है। उससे अगर पेशेंट की ओरल केयर करोगे आप, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट सॉल्यूशन से ओरल केयर करोगे आप, सो उससे वेंटिलेटर असिस्टेड न्यूमोनिया का रिस्क बहुत कम है। सो जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पर है, मेक श्योर कि उसको जब आप ओरल केयर करते हो, तो आपने वो यूज किया होगा व्हेन यू वर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर में प्रोसीजर आती थी माउथ केयर की, नेल केयर की, ऐसी सारी प्रोसीजर। सो उससे वेंटिलेटर असिस्टेड न्यूमोनिया के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। सो लेट्स सी बॉक्स 16.3, client's condition that required special oral hygiene needs. सो फर्स्ट इज अनकॉन्शियसनेस। अगर क्लाइंट अनकॉन्शियस है, सो उनमें थोड़ा आपको स्पेशल केयर देनी होगी। क्या करना होगा? ड्राइंग ऑफ द सलाइवरी सिक्रीशंस, एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स, cooling of salivary secretions increases the risk of microorganism growth and pneumonia risk. जो अनकॉन्शियस क्लाइंट है, उनके सलाइवरी सिक्रेशंस ड्राई हो जाते हैं, गैग रिफ्लेक्स भी उनका एब्सेंट है बिकॉज दे आर अनकॉन्शियस। सलाइवरी सिक्रेशंस ड्राई आउट हो गए, पर जितना भी हो रहा है उनका पूलिंग हो रहा है बिकॉज पेशेंट तो स्वेलो नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर पूलिंग हो गया है। तो जहां पर भी ऐसे कुछ भी चीज ऐसे अक्यूमुलेट हो जाएगी, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ वहां पर हो सकता है, न्यूमोनिया भी हो सकता है। सो ऐसे पेशेंट को आपको बहुत केयरफुली स्पेशली केयर करना होगा। नेक्स्ट इज डायबिटिक मेलिटस, फ्रीक्वेंट पेरिडोंटल डिजीज। जिसको डायबिटीज होता है उसको पेरिडोंटल डिजीजेस ज्यादा होते हैं, लाइक टूथ रिलेटेड, गम्स रिलेटेड डिजीजेस उनको ज्यादा होते हैं। सो मेक श्योर कि उनको आप प्रॉपर केयर दो। जो क्लाइंट्स इम्यूनोसप्रेसिव है, जो जिनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, सो हेड एंड नेक रेडिएशन, एनजी ट्यूब इंट्यूबेशन, स्टोमेटाइटिस एंड चेंज इन फूड और फ्लूइड टॉलरेंस। जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट है, ड्यू टू हेड नेक रेडिएशन की वजह से एनजी ट्यूब इंट्यूबेशन किया है, फिर स्टोमेटाइटिस है। व्हाट इज स्टोमेटाइटिस? inflammation of mouth, इन्फ्लामेशन oral ऑफ oral म्यूकस mucosa. मेम्ब्रेन। यस, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, सो उसकी वजह से वो फूड खाने की भी उसकी जो कैपेसिटी है उसमें टॉलरेंस लेवल में चेंज हो गया है, फ्लूइड लेने की कैपेसिटी में भी चेंज आ गया है। सो इसको भी आपको प्रॉपरली केयर करना होगा। पेशेंट को पेन होगा, कीमोथेरापी, सो फ्रीक्वेंट पेरिडोंटल डिजीज, जो भी पेशेंट कीमोथेरापी रिसीव कर रहे हैं उसको भी फ्रीक्वेंटली पेरिडोंटल डिजीज होगी। आर्टिफिशियल एयरवे है जिसमें, तो ड्राइंग ऑफ सलाइवरी सिक्रीशंस, जिसको आर्टिफिशियल एयरवे ट्रेक्योस्टोमी किया गया है, सो उसका जो मुंह मुंह है उसका पूरा ड्राई आउट हो जाएगा। जो ड्रग यूज कर रहे हैं सच एज मिथेम्फिटेमाइन, सो उसको क्या होगा? जेरोस्टोमिया। व्हाट इज जेरोस्टोमिया? Dry mouth. ड्राई माउथ। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर एग्जाम में जेरोस्टोमिया लिखा हो कि पेशेंट, यू यू हैव असेस, you have done assessment of patient and you notice xerostomia, so xerostomia means dry mouth। so xerostomia हो गया हो, bruxism, so teeth grinding, because वो ड्रग के इफेक्ट में है। so वो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे ज्यादा करते हैं ऐसे टीथ फ्रिक्शंस करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज टीथ ग्राइंडिंग और डेंटल कैरीज। तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम्स ज्यादा है। सो आपको बहुत स्पेशल अलग से उनकी ओरल केयर करनी होगी, बहुत ध्यान रखना होगा इस पेशेंट में। अंडरस्टूड? यस मैम। Yes. Okay, next. Dentures care needs to be done regularly to avoid infection and irritation. ओरल केयर में अगर पेशेंट के डेंचर्स है, आर्टिफिशियल टीथ है, तो उसकी भी केयर प्रॉपरली करनी होगी। डेंचर्स मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली सो दैट दे आर नॉट ब्रोकन। दे कैन बी डिफिकल्ट टू रिप्लेस इफ ब्रोकन। यस, डेंचर्स जो होते हैं वो बहुत ही केयरफुली हमें हैंडल करने हैं। अगर वो आपसे टूट जाएंगे, सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो जो टूट गए हैं सो इजीली उतना रिप्लेस नहीं हो सकते, इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस देम। Dentures needs to be removed at night and let the gums rest and to prevent the buildup of bacteria। जो dentures होते हैं वो रात को निकाल देने होते हैं और उसकी एक स्पेशल लाइक कंटेनर होता है, उसमें ही रखने होते हैं। एनीवेयर यू कैन नॉट प्लेस द डेंचर्स। सो डेंचर्स रात को रिमूव कर देने हैं कि जिसकी वजह से गम्स को भी रेस्ट मिले और बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो।
Dentures needs to be placed in a labeled container and not a napkin or tissue or on a dietary tray so that they are not mistakenly thrown away. Yes, डेंचर्स को एक लेबल्ड कंटेनर, जो उसका डेंचर्स का स्पेशल कंटेनर होता है, उसमें ही रखना होता है. यू कैन नॉट प्लेस इट ऑन अ नैपकिन, कोई टिश्यू पर रख दिया, कोई ट्रे में रख दिया, एनीवेयर कहीं पे भी रख दिया. इट इज नॉट लाइक दैट. Dentures and the mouth needs to be rinsed after meals, cleansed regularly and soaked overnight. Dentures और जो भी माउथ है, जब भी खाना खाओ, कब लाइक ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, बीच में स्नैक्स किया, जब भी खाना खाते हो आफ्टर मील्स, यू हैव टू रिंस द माउथ ऑफ द पेशेंट. एंड डेंचर्स भी आपको ऐसे टैप वाटर में रिंस करने हैं, क्लीन करने हैं, रेगुलरली उसको क्लीन करना है. और रात में जब आप डेंचर्स निकाल देते हो तो डेंचर्स को सोक करके रखना है, वरना वो ड्राई आउट हो जाएंगे. तो आपने देखा होगा कि जो डेंचर्स यूज करते हैं, तो डॉक्टर आस्क देम कि जो भी कंटेनर है उसमें पानी भर दो और उसमें डेंचर्स रख दो. रिमेनिंग टीथ नीड टू बी ब्रश्ड एंड फ्लॉस रेगुलरली. अगर शायद कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को एक भी दांत नहीं है, सारे के सारे डेंचर्स है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि दो तीन दांत है, बाकी के डेंचर्स है, तो जो रिमेनिंग टीथ है उसको ब्रश करना है, उसको फ्लॉसिंग करना है. इट इज नॉट लाइक दैट कि दो तीन है तो उसमें क्या करोगे. सो यू हैव टू एडवाइज द पेशेंट, और पेशेंट नहीं कर सकता तो आपको हेल्प करनी है. सो इट शुड बी ब्रश्ड और फ्लॉस रेगुलरली. नेक्स्ट इज हेयर केयर. हेयर केयर में क्या ध्यान रखना है, तो आस्क द क्लाइंट अबाउट प्रेफरेंसेस ऑफ हेयर केयर इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ शैम्पूज और कंडीशनर. हेयर केयर जब भी आप देते हो पेशेंट को, सो पेशेंट को पूछना है उसकी प्रेफरेंसेस क्या है रिलेटेड टू हेयर केयर, लाइक कौन विच टाइप ऑफ शैम्पू दे यूज, विच टाइप ऑफ कंडीशनर, हेयर ऑयल, उसकी प्रेफरेंसेस पता होनी चाहिए. assess the hair and scalp during hair care and observe the client's ability to perform personal hair care. जब भी आप हेयर केयर दे रहे हो, सो असेस द स्काल्प ऑफ द पेशेंट. पेशेंट का स्काल्प कैसा है, उसके हेयर्स कैसे हैं, वो असेस करने हैं. और यू हैव टू ऑब्जर्व कि क्लाइंट खुद से पर्सनल हेयर केयर कितनी हद तक कर सकता है, व्हाट इज द टॉलरेंस लेवल, कि हेयर वॉशिंग, हेयर ऑयलिंग, हेयर कॉम्बिंग, वो सब हेयर केयर में ही आ जाएगा. वॉशिंग, ऑयलिंग, कॉम्बिंग सब हेयर केयर में ही आता है. सो पेशेंट कितना कर सकता है, यू हैव टू सी दैट. और मेंटेन द इंडिपेंडेंस, जितना वो खुद से कर रहा है उसको खुद ही करने देना है. चेक फॉर एलोपेशिया. व्हाट इज एलोपेशिया? loss हेयर of लॉस. hair. हेयर लॉस। हेयर लॉस हो जाता है फ्रॉम एनीवेयर, लाइक सम पोर्शन में होंगे या फिर पूरे हेड के हेयर लॉस हो जाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज एलोपेशिया. सो पेशेंट को एलोपेशिया है या नहीं. पेडिकुलोसिस कैपिटाइटिस मींस, पेडिकुलोसिस कैपिटाइटिस मींस लाइट्स लाइस, लाइस। जू हो जाती है बाल में, तो वो भी चेक करना है. चेक फॉर द लीजन्स ऑन द स्काल्प, स्काल्प पर कोई लीजन्स है या नहीं. क्लाइंट्स विथ पेडिकुलोसिस कैपिटाइटिस में नीड अ पेडिक्यूलिसिडल शैम्पू. अगर पेशेंट को हेड लाइस है, सो उसके लिए उसका शैम्पू अलग से होता है, लाइक पेडिक्यूलिसिडल. सीडल मीन्स फॉर किलिंग इफेक्ट. सो अलग शैम्पू लगेगा, सो उसमें वो ही शैम्पू आपको यूज करना होगा. Next important red point, clients who are immobilized often have tangled hair that can become mad if not frequently cleaned and brushed. This can negatively impact the client's overall sense of well-being. अगर जो पेशेंट ऐसे इमोबिलाइज है, बहुत देर से बेड रीडन ही है, बहुत टाइम से, तो उनके हेयर्स कैसे हो जाएंगे, टेंगल्ड हो जाएंगे और मैड हो जाएंगे. मैड मीन्स आपने देखा होगा कि टेंगल के साथ साथ उनके हेयर्स जहां से वो सोए होते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, लाइक उसमें गोल 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 बाल में हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज मैड. अगर आप रेगुलरली उसको क्लीन, हेयर ऑयलिंग प्रॉपरली, ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं करोगे, सो टेंगल्ड हो जाएंगे. और उस वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ओवरऑल वेलबींग पर. जो पेशेंट को ऐसे बाल ऐसे हो गए तो पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा. सो ओवरऑल जो सेंस ऑफ वेलबींग है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा वो. ब्रशिंग द हेयर फ्रीक्वेंटली हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑयल इवनली एंड कीप्स द हेयर क्लीन. अगर आप रेगुलरली ब्रशिंग करोगे हेयर, तो उससे क्या होगा कि जो हेयर ऑयल है वो प्रॉपरली इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हेयर्स भी क्लीन रहेंगे. ब्रेडिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट द ट्रैंगल. ब्रेडिंग मीन्स चोटी बनाना. सो अगर आप ब्रेडिंग कर दोगे तो उससे टेंगल्स नहीं होंगे. अगर बाल खुले ही रख दोगे, आपने कॉम्बिंग किया, ब्रशिंग भी किया,
पर बाल खुले छोड़ दिए सो उससे टेंगल हो जाएगा। अगर पोनी टेल बना दी तो भी टेंगल्स हो सकते हैं, सो वी कैन डू द ब्रेडिंग। ब्रेडिंग कर देंगे, चोटी बना देंगे, सो उससे टेंगल्स नहीं होंगे। Dry shampoos and shampoos caps can be used. Full shampoo caps provide a warm, wet massage to the scalp and clean the hair. ड्राई शैम्पूज है या शैम्पू कैप्स है वो बहुत यूजफुल है। उससे आप वार्म, फिर वेट मसाज अगर आपको देना है शैम्पू कैप से ऐसे मसाज कर सकते हो कैप का यूज करके। और क्लीन भी कर सकते हो आप हेयर। शेविंग में बी डन आफ्टर बाथिंग। जो भी शेविंग है, हेयर केयर में जो भी शेविंग है, सो वो बाथिंग के बाद करनी चाहिए। लेट्स विल सी द बॉक्स 16.4। द इम्पोर्टेंट रेड पॉइंट इज an electric razor or clippers needs to be used for clients prone to bleeding, such as those on anticoagulant antiplatelet medication or those with low platelet count। अगर शेविंग करनी है जिसको ब्लीडिंग रिस्क है, सो उसमें आप इलेक्ट्रिक रेजर और क्लीपर्स यूज करोगे, लाइक ट्रिमर्स और वो सब यूज कर सकते हो। नॉर्मल रेजर यूज नहीं कर सकते, नॉर्मल रेजर से क्या होगा, ब्लीडिंग रिस्क और बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक रेजर्स, क्लीपर्स, ट्रिमर्स ये सब आप यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रिक रेजर्स आर ट्रिमर्स, वो इलेक्ट्रिक होते हैं, सो वो आप यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? यस। यस और नो? ओके, सो लेट्स सी बॉक्स 16.4। शेविंग लाइक कैसे करना है, क्या करना है। सो ईच क्लाइंट नीड्स अ पर्सनल रेजर। यस, एक ही रेजर सारे पेशेंट में वी कैन नॉट यूज। तो हर एक इंडिविजुअल का पर्सनल रेजर होगा। एन इलेक्ट्रिक शेवर रेदर देन अ रेजर नीड्स टू बी यूज फॉर क्लाइंट्स ऑन एंटीकोएगुलेंट और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। जो नॉर्मल रेजर होता है उसके वो नहीं यूज करना है। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज इलेक्ट्रिक शेवर, दैट इज ट्रीमर। सो दिस आर डिफरेंट वर्ड्स, इलेक्ट्रिक शेवर, इलेक्ट्रिक रेजर, ट्रीमर्स, और व्हाट वाज अनदर, क्लीपर्स। यस, सो दिस आर द डिफरेंट वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। कोई भी वर्ड हो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस आर यूज्ड फॉर द पेशेंट्स हु हैज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा हो उसमें ये सब यूज करोगे। The skin needs to be moistened with lukewarm water and shaving cream applied। जब भी शेविंग करना हो सो पहले वो स्किन मॉइस्ट करनी है, ल्यूकवार्म वाटर से गीली करनी है, उस पर शेविंग क्रीम अप्लाई करके नॉर्मली शेव कर सकते हो जिसमें ब्लीडिंग रिस्क नहीं है उसमें। The skin needs to be pulled taut and the area shaved with long firm strokes in the direction that the hair grows। स्किन को ऐसे टाइटली पुल करना है, लाइक लूज रख के हम शेविंग नहीं कर सकते। यू हैव टू टाइटली टॉट, टाइटली ऐसे खींचकर पुल करना है। और जहां भी शेव करना है सो लॉन्ग स्ट्रोक्स में शेव करना है। और जिस डायरेक्शन में हेयर्स ग्रो हो रहे हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में शेव नहीं करना है, हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में ही शेविंग होना चाहिए। Mustaches and beards, if not shaved, need to be groomed daily, including shampooing and combing। अगर पेशेंट ऐसा हो कि मस्टेच और बियर्ड रखता है बट शेविंग नहीं करता, सो मस्टेचेस और बियर्ड्स डेली शेव नहीं करने हैं। बट अगर आप रखते हो तो उसको वेल ग्रूम रखना है पेशेंट को भी। और ग्रूमिंग कैसे रखोगे मस्टेचेस और बियर्ड को, सो रेगुलरली शैम्पूइंग और कॉम्बिंग करके बियर्ड्स एंड मस्टेचेस प्रॉपर वेल ग्रूम रखना है। चेक फॉर एनी लीजन्स और एबनॉर्मल ग्रोथ। जब आप शेविंग कर देते हो, शेविंग जब हेयर ग्रोथ होता है फेस पर सो दिखता नहीं है, पर शेविंग करने के बाद कोई एबनॉर्मल लीजन्स या कोई ग्रोथ दिखे सो यू हैव टू चेक कि वेदर इट इज एनी एबनॉर्मल ग्रोथ और लीजन्स कोई प्रेजेंट है या नहीं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। नेक्स्ट इज केयर फॉर आईज, ईयर्स एंड नोज। सब चीज हमने केयर कर दी। नेक्स्ट इज फॉर आईज, ईयर्स एंड नोज। तो hygiene care may need to be modified for the clients who have sensory impairments। जिसको sensory impairments हो, because nose, that is for sensation of smell, sensation of hearing and vision। तो जिसको कोई sensory impairments होगी so उसमें modifications होगी। It is not सेम फॉर ऑल द क्लाइंट्स। जिसको प्रॉब्लम होगा सो उसमें यू हैव टू डू सर्टेन मॉडिफिकेशंस। ड्यूरिंग हाइजीन केयर, फंक्शंस ऑफ आईज, ईयर्स एंड नोज वुड बी असेस्ड। जब भी आप हाइजीन करते हो आईज, ईयर्स और नोज का, तो उसके फंक्शंस भी आप चेक कर लोगे कि पेशेंट को अच्छा दिखता है, सुनाई देता है, स्मेल कर सकता है कि नहीं। Important rate point is for clients who use oxygen tubing, a feeding tube, nasotracheal tube,
Skin assessment and care of the nose, ears beneath the devices needs to be done routinely. Yes. जो भी पेशेंट ऐसे ऑक्सीजन ट्यूबिंग, फीडिंग ट्यूब, नेजोट्रेकियल ट्यूब यूज कर रहे हैं, सो उनको नोज, बिहाइंड द ईयर्स, उसमें ज्यादातर चेक करना है, इंपॉर्टेंट चेक करना है. इट इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस आर द प्रोन एरियाज फॉर द स्किन ब्रेकडाउन. सो हमें खास करके चेक करना है ऐसे पेशेंट्स में. The eyes needs to be cleaned with a water moistened soft washed cloth, cleaning from inner cancers to outer cancers. Eyes कैसे क्लीन करनी है? सो एक वाटर वाला सिर्फ एक सॉफ्ट क्लोथ लेना है, उसको गीला करना है, और इनर कैंसर से आउटर कैंसर पर एक ही स्ट्रोक में क्लीन करना है. यू कैन नॉट रिपीट द स्ट्रोक. एक ही स्ट्रोक में इनर कैंसर से आउटर कैंसर पर क्लीन करना है. A different part of wash clothes would be used each time the eye is clean. For example, you are using this wash cloth. This is a normal wash cloth. आपने ये कॉर्नर यूज किया राइट आई क्लीन करने के लिए. सो अनदर टाइम इफ यू वांट टू क्लीन, सो यू हैव टू चेंज द डिफरेंट पार्ट. सेम पार्ट से आप अगेन क्लीन नहीं कर सकते, दूसरी आई में भी और सेम आई में भी. जब आपको दूसरी बार क्लीन करना हो, सो यू हैव टू चेंज द पार्ट ऑफ दैट वॉश क्लोथ एरिया जो आपने पहले यूज किया. Ability to blink should be assessed for clients who are unconscious. The ability to blink may be impaired, potentially causing injury to the eye due to dryness. Lubricating eye drops should be used. जब भी आप पेशेंट की आई क्लीन कर रहे हो, सो उसकी ब्लिंक कैपेसिटी कैसी है, ब्लिंकिंग एबिलिटी कैसी है, वो आपको चेक कर लेनी है व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग आई केयर. और जो अनकॉन्शियस क्लाइंट है वो ब्लिंक नहीं कर पाएंगे, उनकी आईज ओपन ही रहेगी. तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी आईज में इंजरी हो सकती है ड्यू टू ड्राइनेस. हम ब्लिंक करते हैं, सो उसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहता है. आप यू कैन ट्राई. अब ज्यादातर ऐसे आईज ओपन रखोगे तो आपको ड्राइनेस फील हो जाएगी और यू विल क्लोज योर आईज. सो जिनकी ओपन रहती है उनकी आईज में इंजरी हो सकती है ड्यू टू ड्राइनेस. सो ऐसे जो पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है, उसमें आप ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हो कि जिससे मॉइस्चर बना रहे और आईज इंजरी ना हो. The ear can become impacted with cerumen and may require irrigation. ईयर क्लीनिंग में क्या ध्यान रखना है, तो ईयर में ज्यादा कॉमन क्या होता है, इम्पैक्ट हो जाएंगे. इम्पैक्टेड मीन्स ईयर कैनल इम्पैक्शन, फीकल इम्पैक्शन. इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है, इम्पैक्शन मीन्स ब्लॉकेज. ब्लॉकेज, ब्लॉकेज. बल्क. यस. तो सेरुमेन, ईयर इम्पैक्शन किससे होगा, सेरुमेन वैक्स होता है जो ईयर वैक्स, दैट इज कॉल्ड एज सेरुमेन. सो उससे ईयर ब्लॉक हो जाता है. सो वो हमारा मेजर कंसर्न है. तो ईयर केयर में हमें वो सेरुमेन ही क्लीन करना है. और अगर इफ इट हैज बिकम इम्पेक्टेड, सो उसमें इरिगेशन करना होगा, प्रॉपरली क्लीन आउट करना होगा. द क्लाइंट इज टॉट नॉट टू यूज क्यू टिप्स और टू पुट एनीथिंग इन द ईयर. क्यू टिप्स मीन्स जो ईयरबड्स आते हैं वो. सो वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट कि ईयरबड्स यूज नहीं करना है और कुछ भी कान में नहीं डालना है. यू कैन ओनली यूज स्पेशल डिवाइसेस जो ऐसे शेप के आते हैं आगे से. ऐसे आगे से ऐसे बाउल शेप के आते हैं छोटे छोटे डिवाइस, ऐसे स्पून जैसे. सो वो ही यूज करना है. यू कैन नॉट यूज अदर डिवाइसेस. सो ये पेशेंट को सिखाना है. द क्लाइंट शुड बी असिस्टेड इन द केयर ऑफ आई ग्लासेस, contact lenses, hearing aids, and need to be taught how to clean this assistive device. अगर पेशेंट assistive devices यूज कर रहा है, लाइक चश्मे यूज कर रहा है, तो चश्मे कैसे क्लीन करने हैं. कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज कर रहा है तो उसको कैसे मेंटेन करना है, उसका जो लिक्विड आता है उसमें कैसे आपको क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है, हैंड वॉशिंग करके यूज करना है. सो रिलेटेड टू कॉन्टेक्ट लेंसेज. अगर हियरिंग एड यूज कर रहा है तो कैसे क्लीन करना है, इसकी हाइजीन कैसे मेंटेन रखनी है, वो सब आपको सिखाना होगा पेशेंट को. ओके. सो टिल नाउ लेट्स अप टू दिस मोबिलिटी से कल से देखेंगे. आज हमने हाइजीन कंप्लीट किया है. टुमारो वी विल कंप्लीट मोबिलिटी एंड द डे आफ्टर टुमारो वी विल कंप्लीट द स्किन इंटेग्रिटी. So there are mainly three topics: hygiene, mobility, and skin integrity. Hygiene हमने आज कंप्लीट कर लिया है. Let's do a quick revision of our today's class. मैम,
યસ. મેં એવું સાંભળ્યું છે કે જ્યારે બી હેર ઓઇલિંગ કરીએ ને તો સ્કાલ્પમાં મસાજ નહીં કરવાનું અથવા સ્કાલ્પની અંદર હેર ઓઇલિંગ નહીં કરવાનું, કેમ કે સેબેસિયસ ગ્લેન્ડ છે એ ઓલરેડી sebum પ્રોડક્શન કરે તો આપણી સ્કિનને પ્રોટેક્શન કરે છે. તો ઇઝ ઇટ ટ્રુ? यस. यस इट इज ट्रू. बिकॉज हेयर ऑयलिंग आप करोगे सो सीबम जो है, हमारे हेयर्स हमारी स्किन में सिबेशियस ग्लैंड होते हैं जो नॉर्मली ऑयल सिक्रीट करते हैं. आपने देखा होगा कि आफ्टर 2-3 डेज हमारे हेयर ऑलरेडी ऑयली हो जाते हैं. तो क्यों? बिकॉज जो सीबम जो है जो सिक्रीट करते हैं सिबेशियस ग्लैंड, सो सीबम ऑयली होता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है. बट जिनको प्रॉब्लम है, जिनका स्काल्प ड्राई रहता है, क्यों ड्राई रहता है? बिकॉज उनके जो सीबेशियस ग्लैंड है वो अच्छे नहीं है, वो सीबम सिक्रीट नहीं कर रहे. सो टू प्रिवेंट द ड्राइनेस ऑफ द स्काल्प यू कैन अप्लाई द ऑयल इन द स्काल्प. बट जिनका नॉर्मल है, नॉर्मल सीबम सिक्रीट हो रहा है, सीबेशियस ग्लैंड आर फंक्शनिंग वेल, सो उसमें आप स्काल्प पे हेयर ऑयलिंग नहीं कर सकते. अदरवाइज इट विल ब्लॉक द सीबेशियस ग्लैंड और उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके. सो टुडे वी हैव सीन हाइजीन. हाइजीन में फर्स्ट पॉइंट देखा था पेशेंट की सेल्फ केयर एबिलिटी. सो बिफोर गिविंग हाइजीन केयर टू द पेशेंट यू हैव टू फर्स्ट असेस द सेल्फ केयर एबिलिटी. पेशेंट की सेल्फ केयर एबिलिटी क्या है, कितने खुद से वो कर सकता है, वो आपको चेक करना है. ये जो रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे आपको याद रखने हैं. फर्स्ट हमने देखा बाथिंग. सो बाथिंग में क्या ध्यान रखना था? तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाथ. कौन से पेशेंट में कौन से टाइप का बाथ यूज करोगे? जो कंप्लीट बेड बाथ है, टब बाथ है, शावर है, वो बहुत एग्जॉस्टिंग है. तो इसमें O2 कंजप्शन की डिमांड बढ़ सकती है. सो जिस भी पेशेंट को ऐसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, सो इस पेशेंट में आप अवॉइड करोगे ये टाइप के बात. और अगर आप यूज करते हो तो कीप द ऑक्सीजन विथ यू. पेशेंट को ऑक्सीजन पर रखो बिकॉज ये हाईली ऑक्सीजन कंजप्शन है. तो यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू दैट कि इसमें ऑक्सीजन O2 कंजप्शन ज्यादा होता है, तो जो भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट है उसमें ये यूज नहीं कर सकते. एंड इफ ऑप्शन इज गिवन कि हाँ ये यूज करना है, सो थिंक कि मुझे ऑक्सीजन साथ में रखना होगा, पेशेंट एग्जॉस्टेड ना हो जाए. या फिर इन बिटवीन आप ब्रेक रख सकते हो कि पेशेंट नॉर्मल ब्रीथ कर सके. पार्शियल बेड बाथ जो पार्शियली डिपेंडेंट है उस पर यूज होता है. बाथ बेसिन्स जो सोप एंड वाटर वाला था वो अभी बहुत कॉमनली यूज नहीं होता है बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली सोप एंड वाटर, व्हाट यू कैन यूज इन बाथ बेसिन? क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट. यस. क्लोरहेक्सिडिन CHG आप यूज करोगे तो उससे इन्फेक्शन का रिस्क भी कम हो जाएगा. तो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट कंडीशन आपको जब बाथिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो कौन से इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स लेने हैं वो आपको याद रखना है. इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कैसी डिजीज कंडीशन है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा. यस. जब भी आप बाथिंग प्रोवाइड करते हो या हाइजीन देते हो तो एलर्जीज और कोई प्रोडक्ट्स है उसकी पहले असेसमेंट कर देना है. बाथिंग देने वक्त हाइजीन मेंटेन करनी है, वार्म ये सब मेंटेन करना है. पेरिनियल केयर प्रॉपर देनी है. कौन से पेशेंट को पेरिनियल इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है, कौन से पेशेंट को पेरिनियल स्किन ब्रेकडाउन का रिस्क ज्यादा है, दैट यू हैव सीन. स्किन केयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हाइजीन. सो जब भी आप स्किन केयर देते हो तो तभी आपको स्किन असेसमेंट करना है. स्किन का कलर, टेम्परेचर, टेक्सचर, टर्गर कैसा है, कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई डिवाइसेस यूज हो रहे हैं तो वहां पर इंजरी होने के रिस्क ज्यादा है तो वो आप ज्यादा असेस करोगे. जो भी डार्कर स्किन टोन वाले पेशेंट है तो उनमें असेसमेंट आपको बहुत केयरफुली करना होगा. बिकॉज नॉर्मल पेशेंट के जैसा उसमें असेसमेंट करोगे सो यू विल नॉट फाइंड आउट एनी एबनॉर्मलिटी. सो उनमें ज्यादा चेक करना है. रिस्क फैक्टर क्या कौन से है, किस कंडीशन की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं. तो दिस वे हैव सीन कि ये सारे रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं. कौन से कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स है? तो लाइक ड्राई स्किन, एक्नी, स्किन रैशेस, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, एब्रेशन, सर्जिकल इंसिजन और वुंड. फूट एंड नेल केयर इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हाइजीन. वो हाइजीन में ही आता है. तो जब भी फूट और नेल केयर करते हो सो फूट एंड नेल का असेसमेंट करना है. यू हैव टू सिंपली इंस्पेक्ट कि नेल्स कैसे है, क्या प्रॉब्लम है, सरफेसेस कैसी है, वेदर देयर इज एनी ड्राइनेस, इन्फ्लामेशन, क्रैकिंग है या नहीं, गेट कैसा है पेशेंट का. फिर आप टच करके पाल्पेशन चेक कर सकते हो. पेडल पल्सेस आप चेक करोगे. पिन प्रिक सेंसेशन कैसा है, पेशेंट के बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, गेट कैसा है पेशेंट का. सो ऑल दिस यू विल चेक. कौन से कॉमन फूट और नेल प्रॉब्लम्स है? सो यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट इज कैलस, व्हाट इज पॉन्स, व्हाट इज प्लांटर वॉट्स,
व्हाट इज टीनिया पेडिस, व्हाट इज इनग्रोन नेल्स, पेरिनोशिया, फूड ओडर्स, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है। एंड व्हाट आर दे, यू हैव टू रिमेम्बर। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द फुट एंड नेल केयर, सब पेशेंट की फुट एंड नेल केयर कैसे करनी है, उनके फुट जो है, हैंड्स, अगर नेल कट करना है तो हैंड और फुट दोनों ल्यूकवार्म वाटर में आप सोक करके रखोगे थोड़ी देर के लिए। अगर वो सॉफ्ट हो जाए, सोकिंग से वो सॉफ्ट हो जाते हैं नेल्स, तो इजी हो सकता है ट्रिमिंग। तो सोक करने के बाद कंप्लीटली उसको ड्राई करना है, थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। ड्राई करने के बाद आप नेल्स ट्रिमिंग कर सकते हो। बट दो पेशेंट में आप ये नहीं कर सकते। विच आर दिस टू पेशेंट्स? Patient with diabetes mellitus, पेटिस मेलाइटस एंड peripheral Peripheral पेरिफेरल vascular. वेस्कुलर डिजीज। यस, तो ये दो पेशेंट में आप फूड केयर और नेल केयर नहीं दे सकते। हु विल गिव द केयर टू सच पेशेंट्स? PHCP, Podiatric. पीएचसीपी Podiatrics और, and PH. यस, podiatrists. पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट देगा और पीएचसीपी देगा। तो रिमेम्बर दिस थिंग। ओरल केयर हमने देखा था कि ओरल केयर में ब्रशिंग आएगा, फ्लॉसिंग आएगा और रिंसिंग आएगा। सो ब्रशिंग करने में फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए, बिकॉज फ्लोराइड क्या होता है कि जो इनेमल होता है वो स्ट्रॉन्ग करता है, जो डीके होता है वो प्रिवेंट करता है, फ्लोराइड। सो फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट होनी चाहिए। फ्लॉसिंग करते हो तो फ्लॉसिंग नॉन वैक्स होनी चाहिए या अनवैक्स, वैक्स वाला फ्लॉस यूज नहीं कर सकते। और रिंसिंग के लिए जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हो तो वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर। जो भी पेशेंट फ्लॉसिंग कर रहे हैं, सो कौन से पेशेंट में विगरस फ्लॉसिंग अवॉइड करना है? ब्लीडिंग रिस्क है. यस, जिनको ब्लीडिंग रिस्क है। सो ब्लीडिंग प्रिकॉशंस में आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि इसमें विगरस फ्लॉसिंग वी विल अवॉइड एज अ ब्लीडिंग प्रिकॉशन, ब्लीडिंग ना हो जाए इसकी वजह से विगरस फ्लॉसिंग अवॉइड करेंगे। जो भी पेशेंट वेंटिलेटर पर है, सो उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? यू विल यूज Mouth care. वन थिंग, माउथ ओरल केयर, बट किससे करोगे? Chlorhexidine. क्लोर क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, Chlorhexidine. ये अगर उससे आप करोगे माउथ केयर, तो उससे वेंटिलेटर असिस्टेड न्यूमोनिया, वीएपी की रिस्क बहुत कम हो सकती है। सो आपने देखा होगा कि आईसीयू में ओरल केयर जो करते हो पेशेंट का, आपने ब्लू 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 वाला सॉल्यूशन वो बहुत कॉमनली यूज होता है। कौन सी कंडीशंस ऐसी थी जिसमें ज्यादा स्पेशल ओरल केयर की रिक्वायरमेंट होगी? सो अनकॉन्शियस पेशेंट, डायबिटीज, इम्यूनोसप्रेशन, कीमोथेरेपी, आर्टिफिशियल एयरवे और ड्रग यूज कर रहे हो, सो ये पेशेंट में आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। डेंचर्स हो तो कैसे क्लीन करने हैं? एवरी मील के बाद माउथ और डेंचर्स रिंस करने हैं पानी से, और डेंचर्स को उसके स्पेशल कंटेनर में ही रखने हैं, नॉट एनीवेयर एल्स। और ओवरनाइट सोक करके रखने हैं। जो रिमेनिंग टीथ हो पेशेंट के मुंह में, उसको भी ब्रश और फ्लॉस करना है। हेयर केयर में पेशेंट की प्रेफरेंस पूछनी है कि कौन से टाइप का हेयर ऑयल, शैम्पू या कंडीशनर आप यूज करते हो। जब भी हेयर केयर देते हो तो हेयर और स्कैल्प तभी चेक करना है, एलोपेशिया है या लाइस है कि नहीं। अगर लाइस है तो उसका स्पेशल शैम्पू है वो यूज करना है। नॉर्मली जो पेशेंट इमोबिलाइज होते हैं उनके हेयर टेंगल्स और मैट हो जाते हैं, सो उसको फ्रिक्वेंटली क्लीन और ब्रश करना चाहिए। और ब्रशिंग से हेयर ऑयल प्रॉपर रहता है, ब्रेडिंग करने से आपको टेंगल प्रिवेंट कर सकते हो। सो दिस आर द डिफरेंट थिंग यू कैन रिमेम्बर। शेविंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेयर केयर, बिकॉज वो हेयर ही है, फेशियल जो हेयर है वो हेयर है। सो नॉर्मली सारे पेशेंट में आप शेविंग कर सकते हो, बट कौन से पेशेंट है जिसमें शेविंग में थोड़ी मॉडिफिकेशंस है? कौन से पेशेंट है ऐसे? ब्लीडिंग रिस्क है यस, ज्यादा. ब्लीडिंग रिस्क वाले पेशेंट है, तो उसमें शेविंग कैसे करोगे आप? इलेक्ट्रिकल रेजर्स. यस, वी कैन नॉट यूज नॉर्मल रेजर्स। जो नॉर्मल शेविंग के लिए रेजर्स होते हैं वो यूज नहीं कर सकते, उनमें इलेक्ट्रिक रेजर्स, क्लीपर्स, इलेक्ट्रिक शेवर्स, ट्रिमर्स, दिस आर द वर्ड्स। सो ये ही यूज करना है आपको। कैसे शेविंग में क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, ल्यूक वार्म करके, स्किन कूल करके, ये सब हमने देखा था। देन वी हैव सीन द हाइजीन फॉर आईज, ईयर एंड नोज। डिपेंडिंग ऑन द सेंसर इम्पेयरमेंट आप थोड़ी मॉडिफिकेशन करोगे। अगर पेशेंट के आईज में, ईयर्स में या नोज में प्रॉब्लम है, देन यू विल चेंज योर टेक्निक और मेथड। नॉर्मली आईज और ईयर्स
जब भी आप केयर करते हो तो उसका फंक्शन भी चेक कर लेना है उस बार ही कि कैसा है फंक्शन। और खास करके जो पेशेंट ऑक्सीजन ट्यूबिंग, नेसोट्रेकियल ट्यूब, फीडिंग ट्यूब पर है, सो उनमें जो पूरी हमने ऐसे ईयर्स के पीछे नोज पर ऐसे होती है, तो वो खास करके चेक करना है। आईज को ऐसे क्लीन करोगे, एक वॉश क्लोथ, सॉफ्ट वॉश क्लोथ लेके गीला करके इनर कैंसर से आउटर कैंसर पर क्लीन करोगे। और एक ही स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक, सिंगल टाइम। सेकेंड टाइम अगर स्ट्रोक करना है सो यू हैव टू चेंज द पार्ट एंड फिर इनर कैंसर से आउटर कैंसर तक क्लीन करना है। जो पेशेंट की ब्लिंकिंग की एबिलिटी है आपको चेक करनी है। अनकॉन्शियस क्लाइंट है, वो ब्लिंक नहीं कर सकते, सो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है उसमें? आई ड्राइनेस। ड्राई हो जाएगी, ड्राइनेस की वजह से इंजरी होगी। सो टू प्रिवेंट दैट व्हाट वी कैन डू? आई ड्रॉप्स लुब्रिकेट। आई ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप ड्रॉप्स यूज लुब्रिकेट। कर सकते हैं, यस। फिर ईयर में सेरुमेन क्लीनिंग ही होता है। अगर पूरा ईयर फुल हो गया है, ब्लॉक हो गया है सेरुमेन से, तो इरिगेशन करना होगा। पेशेंट को क्या एडवाइस करोगे कि यू कैन नॉट यूज द क्यू टिप, ईयरबड्स या फिर कुछ भी कान में ऐसे नहीं डाल सकते। यू कैन सिंपली यूज द स्पेशल डिवाइस ओनली। जो भी क्लाइंट ऐसे असिस्टिव डिवाइसेस यूज करते हैं, लाइक सन आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, हियरिंग एड्स, तो कैसे क्लीन करना है, उसकी हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, वो सब आप पेशेंट को सिखाओगे। दिस इज रिलेटेड टू हाइजीन ऑफ द पेशेंट। अंडरस्टूड? यस मैम। मैम। ओके। एनी डाउट्स? नो मैम। नो। ओके। Harshil Parmal, do you understand each and every topic? Yes, ma'am. Okay. So see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. थैंक यू Thank मैम। you, ma'am.